अच्छा, Bismillahirrahmanirrahim. This lecture is actually the continuation of the previous lecture, in which we introduce the cooling and heating load on the air conditioning equipment. We discuss partly with reference to the external source of the cooling load, which is the solar radiation. We discuss the various angles related to the solar. We discuss the different angles related to the building structure. And in the last lecture, we discussed the fenestration load, which is actually through the radiation, which is actually the radiation transferring or through the absorption through transparent surfaces, and which finally become the part of the load on the equipment. The load is known as fenestration load. In that, we discuss actually that how we can increase and decrease the fenestration load if we change the orientation of the glasses. Similarly, if we use blinds, we use, if let's say if we use the curtains and if we use the overhangs, we can actually increase or decrease the cooling load through these sources. So that was the discussion in the last lecture, and I shared the recording with the rest of the sections. Unfortunately, last time we didn't take the lecture with section A and some other section. So if you didn't take the class and you have not listened to the video which I shared with you, I request कि आप उसको देख ले. और आज का क्लास उसकी कंटिन्यूएशन है, लेकिन दिस लेक्चर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस लेक्चर, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट है. ठीक है. So the slide which is visible to you on your screen, वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अच्छा, ये स्क्रीन नजर आ रहा है आपको? यस सर. हेलो. अच्छा, एक मिनट. अच्छा, the cooling load equipment. There are actually two sources of the cooling load. One is known as internal cooling load, and the second one is external cooling load. Now, the internal cooling load refers to those sources which are actually contributing to the cooling load inside the conditioned space. ठीक है. जैसा रूम के अंदर लोग बैठे हैं, उनके अंदर रूम के अंदर लाइटिंग सिस्टम है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मल्टीमीडिया है, लेट्स से, इसके अलावा प्रिंटर्स है, कंप्यूटर्स हैं. तो ये सारे जो सोर्सेज है जो उस रूम के अंदर कूलिंग लोड में कंट्रीब्यूशन उनकी बनती है, उन सोर्सेज को कहते हैं इंटरनल कूलिंग लोड सोर्सेज, और उनसे लोड आता है उसको कहा जाता है इंटरनल कूलिंग लोड. ठीक है. इसके बरक्स कुछ सोर्सेज हमारे पास एक्सटर्नल में आते हैं. जिस तरह सन है, उससे सोलर रेडिएशन गिरती है, तो एक्सटर्नल द कंडीशन स्पेस बाउंड्री के बाहर से लोड आता है इक्विपमेंट के ऊपर, तो उसको एक्सटर्नल कूलिंग लोड सोर्सेस कहा जाता है. ठीक है. उसमें आपके पास आता है सोलर रेडिएशन, जो ईयर इनफिल्ट्रेट होके अंदर आती है, लीकेज होती है. ठीक है. क्रैक्स के थ्रू, या आप लेट से कमरे से बाहर जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं, तो बाहर से अंदर ईयर आती है. ठीक है. इसको एक्चुअल इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है. So these are actually the external cooling load sources. So in today's lecture, we will cover both the internal cooling load sources and partly the external cooling load sources, which we already discussed in the previous lecture. So according to this classification of the cooling load, the building may be externally loaded or it may be internally loaded. अब एक्सटर्नली लोडेड का क्या मतलब है? एक्सटर्नली लोडेड बिल्डिंग वो होते हैं जिसमें एक्सटर्नल सोर्सेज से जो लोड आता है इक्विपमेंट के ऊपर वो ज्यादा होता है बनिस्बत इंटरनल सोर्सेज से. ठीक है. सो जो दो क्लासिफिकेशन है एक्सटर्नली लोडेड बिल्डिंग, उसमें लिखा है कि इंटरनल कूलिंग लोड इज लेस देन एज कंपेयर टू एक्सटर्नल कूलिंग लोड.
इसी तरह इंटरनली लोडेड बिल्डिंग में जो इंटरनल कूल लोड होता है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू एक्सटर्नल लोड, ठीक है ना। सो दीज आर टू क्लासिफिकेशन ऑफ द लोड ऑन द इक्विपमेंट के इंटरनल सोर्सेज से कितना लोड आता है, अगर वो ज्यादा है बनिस्बत एक्सटर्नल सोर्सेज तो उस बिल्डिंग को कहा जाता है कि दिस बिल्डिंग इज इंटरनली लोडेड, क्योंकि उसका लोड ज्यादा है, ठीक है। इसी तरह एक्सटर्नली लोडेड का मतलब ये है कि एक्सटर्नल सोर्सेज से लोड उस पर ज्यादा है एज कंपेयर टू द सोर्सेज विच आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड द लोड फ्रॉम द इंटरनल सोर्सेज, उससे उसका लोड ज्यादा आएगा। जी, इस स्लाइड से अगर कोई इशू है आप लोगों का पूछ लें। हेलो, क्लियर है सर? नो सर, Clear है, क्लियर clear. है। आवाज मेरी आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। अच्छा, सो गो टुवर्ड द सेकंड स्लाइड और उसमें देखते हैं ये रिक्वायरमेंट ऑफ लोड कैलकुलेशन। ये जनरली हमने लोड कैलकुलेशन से जब लेक्चर हमने स्टार्ट की थी तो ये सारी डिस्कशन उसमें की थी कि हम लोड कैलकुलेट क्यों करते हैं, ठीक है। तो दोबारा की एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। कूलिंग लोड कैलकुलेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर सिलेक्शन ऑफ एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट। जाहिर बात है कि आप रूम के लिए एयर कंडीशनर या कोई बड़ा बिल्डिंग है उसके लिए सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग अगर आप डिज़ाइन करते हैं तो आपको लोड का पता होना चाहिए कि इस पूरे बिल्डिंग का लोड कितना है, तभी जाके आप इक्विपमेंट सेलेक्ट कर सकते। तो डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से लोड कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये ना करें और कोई रैंडमली आप सेलेक्ट कर ले प्लांट को तो दो सिचुएशन काज हो सकते हैं। मे बी आप लोड आपने ओवर एस्टिमेट किया हो, ठीक है, और एक्चुअली जो है इक्विपमेंट लेट से आपने हाई टनेज कैपेसिटी की लगा दी, लेकिन एक्चुअल जो लोड आपके ऊपर वो कम है, तो दो नुकसान आपके हो जाएंगे। वन इज के आपका जो कैपिटल कास्ट है वो ज्यादा होगा और उसको रन करने का जो रनिंग कास्ट है वो भी ज्यादा आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपने लोड कैलकुलेट नहीं किया और आपने इक्विपमेंट लगा दी और उसकी टनेज कैपेसिटी रिक्वायर्ड लोड से कम हो तो उसमें भी नुकसान हो जाएगा। आपका इक्विपमेंट चलता रहेगा लेकिन थर्मल कंफर्ट उससे अचीव नहीं होगी। सो बिफोर सेलेक्टिंग द एयर कंडीशनिंग equipment, the best approach is to first calculate the load of that building, and after the load calculation then you need to select the air conditioning tonnage capacity required for taking that load, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने जहन में रखना है, ठीक है। so this whole discussion is or this slide is relevant with the requirement of the load calculation. so एक मिनट, ये सेक्शन ई का कोई मैसेज आया है, ये देख लें। अच्छा, ये तो लिंक तो मैंने शेयर किया है सबके साथ, सेक्शन के साथ शेयर नहीं है। कोई है स्टूडेंट सेक्शन ई का? सर शेयर है। आप सेक्शन से हैं? हाँ बिल्कुल सर। अच्छा, तो एक स्टूडेंट ने मैसेज किया है, आप मान लिया अगर आपका कोई ग्रुप वगैरह है उसमें आप दे दे, ठीक है। सही है सर। उस अपने सीआर से कह दो कि मैसेज कर ले के लिंक शेयर हो गया है, ठीक है। अच्छा, so if the load is underestimated, the required thermal comfort may not be achieved with the selected equipment। तो जो लिखा हुआ है ब्रैकेट में कि एक्चुअल लोड अगर ज्यादा हो इंस्टॉल कैपेसिटी से तो थर्मल कंफर्ट अचीव नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह अगर टनेज कैपेसिटी जो आपने इक्विपमेंट लगाया है वो ज्यादा टन का है और एक्चुअल लोड उससे कम है तो दिस वी कंसिडर एज अ पुअर डिजाइन because the running cost will be high and the equipment will have high capital cost, ठीक है। तो उस ये भी जो है बेस्ट डिजाइन का नहीं होगा। तो you will first calculate the load and you need to calculate the peak load, and based on the peak load then you will select the equipment
और उसके मुताबिक जो ड्रेनेज कैपेसिटी आएगी, थोड़ा बहुत टॉलरेंस डाल के जो है आप उस कैपेसिटी के इक्विपमेंट उस रूम के अंदर इंस्टॉल करेंगे। जी, इससे अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। क्वेश्चन है? क्लियर है सर। अच्छा, नो this picture is actually showing the sources which are inside the room and the sources which are outside the room. So those sources which are outside the room and they are contributing toward the load will be considered as the external load sources, and those sources which are contributing toward the load that are actually residing inside the room will be the internal sources। ठीक है, तो आप ये देख ले कि यहाँ पर ये आदमी बैठा हुआ है, तो you know that the human body is rejecting the heat continuously। ठीक है, तो वो हीट बनेगा लोड का हिस्सा, तो ये इंटरनल सोर्स है। इसके अलावा ये लाइट्स आप देख रहे हैं, इससे जब रेडिएशन इमिट होती है और व्हेन दीज रेडिएशन आर ट्रेवलिंग थ्रू द ईयर पाथ, तो कुछ ईयर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ आगे जाके सरफेस से टकराती है, उसके अंदर कुछ रिफ्लेक्ट, कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है। अल्टीमेटली ये रिफ्लेक्शन प्रोसेस होता रहेगा, एब्जॉर्ब होती जाएगी, एब्जॉर्ब होती जाएगी। अल्टीमेटली सारी की सारी जो रेडिएशन है वो रूम के मुख्तलिफ मटेरियल के अंदर एब्जॉर्ब होके लोड का हिस्सा अल्टीमेटली फिर बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह इक्विपमेंट्स पड़े हैं, ये कंप्यूटर आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इससे भी आपको अंदाजा होता है कि जो इस कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, तो जब ऑपरेट होती है तो हीट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और वो हीट इसके अंदर जो पता लगा होता है छोटा सा, वो हीट उससे निकालती है, बिकॉज अगर वो ना निकाले तो उसकी वायर जो है वो जल सकती है। ठीक है, तो वो अगेन इंटरनल सोर्स है और उससे लोड बनता है। ठीक है, इसके अलावा कोई और डिवाइस आपने लगाई है, कोई फैन है, मोटर है। ठीक है, इसके अलावा किचन से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं। ठीक है, तो अगर वो सारे इक्विपमेंट रूम के अंदर पड़े हैं और उससे हीट प्रोड्यूस होती है तो वो इंटरनल सोर्सेज में आ जाती है। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्सेज में आप देख रहे हैं यहाँ पर सन बना हुआ है और उससे जो ग्लास है उसके थ्रू जो है फेनेस्ट्रेशन लोड से हीट इंटर हो रहा है। ठीक है, थ्रू द रेडिएशन। इसी तरह जो रूफ है उससे हीट कंडक्ट हो रही है, फ्लोर से हीट कंडक्ट हो रही है इधर। ठीक है, एक्सटीरियर वॉल से हीट कंडक्ट हो रही है और वो ट्रांसफर होके रूम के अंदर आ रही है। ठीक है, सो दीज आर एक्चुअली द सोर्सेज, द एक्सटर्नल सोर्सेज, और इससे हीट आती है रूम के अंदर और वो रूम के लोड का, कूलिंग लोड का हिस्सा बन जाती है। ठीक है, इसी तरह एयर इनफिल्ट्रेट होती है। ठीक है, देयर आर वेरियस सोर्सेस व्हिच द इनफिल्ट्रेशन अकर, बिकॉज इनसाइड द रूम एयर की टेम्परेचर कुछ और होती है, आउटसाइड एयर की टेम्परेचर कुछ और होती है। ठीक है, तो जो स्टेक इफेक्ट होता है डेंसिटी डिफरेंस की वजह से, जो ठंडी एयर होती है वो नीचे आ जाती है और जो गर्म एयर होती है वो ऊपर जाती है। ठीक है, तो लेट्स से अगर कोई क्रैक्स वगैरह है रूम के अंदर, तो due to difference of density of the air outside the room and inside the room, ये air infiltrate हो your room के अंदर आएगी। So when the external air is getting enter to the room, so that air will not be at the condition which the air conditioning equipment has maintained inside the room। ठीक है, तो उस कंडीशन पर लाने के लिए उस एयर से भी आपने हीट निकालनी होगी, तो एक्चुअली वो हीट लोड का हिस्सा बन जाती है। ठीक है, तो इस पूरे पिक्चर के अंदर वो सारे जो एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्सेज है वो लिखे गए हैं और आप उसको स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है इससे? सर जी जी, एक्सटर्नल लोड क्या? सर यूजली एक्सटर्नल लोड जो है होगा सर वो ज्यादा होगा इंटरनल लोड से मोस्टली। हाँ, वो डिपेंड करता है। ठीक है, कि बिल्डिंग के अंदर एक्टिविटी क्या है। लेट से आप क्लासरूम कंसीडर कर ले, तो मे भी क्लासरूम के अंदर, और अगर वो सनलाइट क्लासरूम है, मतलब चारों दीवारों पर सूरज की रेज जो है गिर सकती हो। ठीक है, तो उस केस में मे भी एक्सटर्नल सोर्स ज्यादा हो। लेकिन अगर आप एक
थिएटर ले ले, ठीक है, या सिनेमा हॉल ले ले, या जो रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, या जो वेडिंग हॉल्स होते हैं जिसमें इंटरनल जो सोर्सेज जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हो, और लेट से वो सनलाइट जो है ना हो उस पर, मतलब डायरेक्ट रेडिएशन गिर रही हो, तो उस केस में इंटरनल सोर्सेज से लोड ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि वो बिल्डिंग किस एक्टिविटी के लिए यूटिलाइज हो रही है, ठीक है। तो फिर उस बेसिस पर आप कह सकते हैं कि दिस बिल्डिंग इज इंटरनली लोडेड और एक्सटर्नली लोडेड। अच्छा, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। अच्छा, नो let's discuss the load calculation of the internal sources, and then we will discuss it with reference to external sources. So estimation of internal cooling load. The first one is occupancy load. Occupancy load क्या बात है कि इसमें जो ह्यूमन बीइंग्स बैठते हैं उनसे कितना लोड आएगा, वो क्या होगा, उसकी डिस्कशन किस तरह से है वो देख लेते हैं, ठीक है। सो द ऑक्यूपेंट्स इन द कंडीशन स्पेस कंट्रीब्यूट टू टू टाइप्स ऑफ लोड। क्या है? द फर्स्ट वन इज सेंसिबल लोड। ये बिल्कुल स्टार्ट में भी जब एयर कंडीशनिंग की थ्योरी ले रहे थे तो उसमें भी डिस्कस किया था कि द ह्यूमन बॉडी इज जस्ट लाइक द इंजन, ठीक है। इंजन में क्या होता है कि फ्यूल इंजन को मिलती है, कंबशन होती है, उससे वर्क मिलता है और हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। एग्जैक्टली यही काम जो है ह्यूमन बॉडी भी करती है, खुराक लेती है, वो मेटाबॉलिक जो फिनोमेना है मेटाबॉलिज्म, उसके थ्रू वो खुराक की जो केमिकल एनर्जी है वो पार्टली वर्क में बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए यूटिलाइज होती है, और पार्टली जो है जो हीट है वो डिसिपेट होती है सराउंडिंग। और जस्ट लाइक द हीट इंजन, ह्यूमन बॉडी की जो एफिशिएंसी है दैट इज ऑलमोस्ट 85%, मींस के 85% हीट में कन्वर्ट होगी और 15% जो एनर्जी रिक्वायर्ड है बॉडी के मुख्तलिफ, लेट से आप घूम रहे हैं, ठीक है, वॉक कर रहे हैं या बोल रहे हैं, तो जो आप मतलब आपकी टांग जो है सॉरी जुबान आप अप एंड डाउन जो मोशन है, या आपका जो हार्ट बीट है, या जो लंग्स की मोशन है, इसमें जो एनर्जी कंज्यूम होती है वो इसमें यूटिलाइज हो जाती है। द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट मस्ट बी रिजेक्टेड फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो दो सोर्सेज से हीट रिजेक्ट होती है, वन इज द सेंसिबल in which the radiation mode, convection mode and the conduction mode are responsible for the transfer of the sensible heat from the body to the surrounding or the air which is in contact with the human body, ठीक है। दूसरा जो लोड ट्रांसफर होता है या जो हीट ट्रांसफर होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। वो क्या होती है? जो मैकेनिज्म है ह्यूमन बॉडी के अंदर के जो सेबेशियस ग्लैंड है उससे स्वेट जो है वो प्रोड्यूस होती है, वो बदन के स्किन के ऊपर आती है, ठीक है, और वो फिर एवोपोरेट होती है ह्यूमन बॉडी से हीट पिक करके, तो उस एवोपोरेशन के अंदर लेटेंट हीट एब्जॉर्ब होती है, और वो लेटेंट हीट स्टीम वाटर को जो है स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट करती है, तो स्टीम निकल के एवोपोरेट होके रूम के अंदर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम जो है वो आ जाती है, ठीक है। तो दो लोड आते हैं ह्यूमन बॉडी से, वन इज द सेंसिबल लोड एंड द सेकंड वन इज द लेटेंट लोड। अब सेंसिबल लोड में जो इक्वेशन है QS दैट इज इक्वल टू N which stand for the number of people and then in the bracket SHG per person, सबसेट में P लिखा हुआ है, ठीक है। सेंसिबल हीट गेन पर इंडिविजुअल वो कितनी है? तो जितने बंदे होंगे, जितने स्टूडेंट्स होंगे या जितने लोग होंगे रूम के अंदर, वो आप पर पर्सन के हिसाब से वो हीट गिवन होती है, तो टोटल मल्टीप्लाई करके आपके पास टोटल हीट आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके साथ एक फैक्टर है CLF, कूलिंग लोड फैक्टर इसको कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये कूलिंग लोड फैक्टर क्या है? ये इसकी अंडरस्टैंडिंग इस तरह से है कि कुछ हीट जो ह्यूमन बॉडी से सेंसिबल हीट ट्रांसफर है वो डायरेक्टली ईयर के ऊपर यूटिलाइज होके वो ईयर का हिस्सा बन जाती है, लेकिन कुछ हीट थोड़ा सा टाइम लेती है कि लेट से ह्यूमन बॉडी से वो हीट रिजेक्ट हो गई,
लेकिन वो एकदम से इंस्टेंटेनियसली उस रूम के ईयर के ऊपर यूटिलाइज नहीं होगी, बल्कि वो कुछ टाइम लेगी। और ये हीट जो ह्यूमन बॉडी से रेडिएशन मोड से ट्रांसफर होती है, वो उसमें जो है वो इंस्टेंटेनियसली रूम के ऊपर उसका लोड नहीं आता ईयर के ऊपर। ठीक है, किस तरह? लेट्स से बॉडी से रेडिएशन इमिट हो गई, तो वो रेडिएशन ईयर से गुजरेगी, कुछ रेडिएशन ईयर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ जो है ईयर के पाथ से गुजर के सरफेसेस से टकराएगी। ठीक है, कुछ उससे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ सरफेस एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, तो लेट्स से रेडिएशन से बॉडी से हीट चली गई है 2 वाट्स, लेकिन जब ईयर से ट्रांसफर हो रही थी, लेट्स से वो 1 वाट ईयर की एब्जॉर्ब हो गई, बाकी 1 वाट जो है दूसरे सरफेस से टकरा गई। ठीक है, उस टकराने से कुछ जो है उस 1 वाट में से लेट्स से 0.5 वाट से एब्जॉर्ब हो गई, फिर ईयर के अंदर उसकी रिफ्लेक्शन हो गई। तो ये सिलसिला इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये है कि 2 आवर्स लेट्स से 2 PM के टाइम के ऊपर बॉडी से रिलीज हो गई, लेकिन वो 2 PM के ऊपर ईयर के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगी, बल्कि लेट्स से 2:15 पर वो ईयर के ऊपर उसका लोड आ जाएगा। ठीक है, सो दिस CLF कूलिंग लोड फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट टाइम लेग। ठीक है ना, और ये हम टेबल अच्छा, हेलो, आवाज आ रही है आपको? यस सर। अच्छा, ये डिस्कनेक्ट हो गया था, तो दोबारा इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, 1 मिनट। अच्छा, ये स्क्रीन शेयर हो गया है? जी सर, हो गया। अच्छा, सो ये इससे रेलेवेंट अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ ले। कोई क्वेश्चन है इसमें? जो SHGF है ना, ये सेंसिबल हीट गेन पर पर्सन, ये भी गिवन होगा आपको, और लेटेंट हीट गेन पर पर्सन जो है वो भी गिवन होगा टेबल्स फॉर्म में। ठीक है, और आपने लेट से रूम के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी एक्टिविटी क्या है, उस हर एक्टिविटी के सामने सेंसिबल हीट गेन फैक्टर गिवन होता है। ठीक है, तो वो उस एक्टिविटी लेट से कुछ कोई स्टूडेंट क्वाइटली जो है बैठा हुआ है, ठीक है, टीचर है टीचिंग कर रहा है, तो हर एक्टिविटी के सामने
लोड गिवन होता है कि इस एक्टिविटी में सेंसिबल हीट पर पर्सन इतनी रिजेक्ट होगी और लेटेंट हीट इतनी रिजेक्ट होगी। तो जितने लोग होंगे उसको आपने सिंपली मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और कूलिंग लोड फैक्टर के मुतालिक अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो इस CLF को जो यहाँ पर इक्वेशन में गिवन है इसको आपने सिंपली 1 के बराबर लेना है, ठीक है ना। हेलो, Okay, sir. राइट सर। अच्छा, नो लेट्स गो टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। उसमें ये CLF की वैल्यूज गिवन होगी, Excuse me, ठीक है। sir. ये आपको नजर आ रहा है या नहीं? सर अच्छा, बहुत छोटे ये हैं। आपको नजर आ यस सर। ये आप देख सकते हैं ना, कूलिंग clear लोड नहीं हो फैक्टर रहा है। फॉर यस सर। जी। जी जी सर। Yes, sir. यस सर। ये रिकॉर्डिंग इसकी ऑन है या नहीं? ऑन है रिकॉर्डिंग सर। तो Yes, ऑन sir. है ना। अच्छा, और ये स्क्रीन को नजर आ रहे हैं या नहीं? आ रहा है सर नजर। अच्छा, इसमें टेबल 36 पर लिखा हुआ है कूलिंग लोड फैक्टर फॉर पीपल्स एंड अनहुडेड इक्विपमेंट्स, ठीक है। लेफ्ट साइड पर कॉलम ये इसमें लिखा हुआ है आवर्स इन स्पेस, ठीक है। और राइट साइड पर बिल्कुल फर्स्ट रो में लिखा हुआ है नंबर ऑफ आवर्स आफ्टर आफ्टर एंट्री इनटू स्पेस आर इक्विपमेंट्स आर टर्न ऑन, ठीक है। तो ये देख ले, ऊपर लिखे हैं घंटे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऑनवर्ड अप टू 24 आवर्स, ठीक है। और नीचे घंटे लिखे हैं 2 4 6 8 10 14 16 18। इसका मतलब ये है कि कितने घंटों के लिए उसके अंदर वो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। लेट्स से अगर 2 घंटों के लिए बैठे हैं और आफ्टर 6 आवर्स आप उसका इम्पैक्ट देखना चाहते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या आया वो आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स से 1 घंटे के बाद लोग जो बैठे हैं वो लेट्स से 100 वाट्स हीट जो है ह्यूमन बॉडी से रिजेक्ट हो रही है, ठीक। तो 1 घंटे के बाद जो रूम के ऊपर जो उसका लोड आएगा वो उसका 75% आएगा। ये 0.75 आप देख सकते हैं यहाँ पर, देख रहे हो ना। 1 मिनट, इसको मैं पेंट पर लेके जाता हूँ, उधर क्लिक हो जाएगा, ठीक। इसको थोड़ा सा समझाना है क्योंकि ये हर लोड के साथ ये कूलिंग फैक्टर उसका आएगा। अच्छा, ये पेंट फाइल शुरू हुई है। Yes, sir. अच्छा, यहाँ पर देख ले, ठीक है। लेट्स से आप सुबह 8 बजे आए हैं और 10 बजे पर आप ह्यूमन बॉडी से जो हीट रिजेक्ट हो रही है उसका इम्पैक्ट देखना चाहते हैं, ठीक है। तो जिस तरह मैंने कहा है कि लेट्स से 2 या 100 वाट्स ह्यूमन बॉडी से हीट रिजेक्ट हो रही है, तो 2 घंटे आप उसमें बैठे हैं, लेकिन 1 घंटे बाद 9 बजे के ऊपर आप उसका इम्पैक्ट देखना चाहते हैं कि अब लोड का एक्चुअल लोड 100 वाट्स पर आवर रिजेक्ट हो रही है, तो 2 घंटों में 200 वाट्स रिजेक्ट होगी। लेकिन 1 घंटे बाद उसका इम्पैक्ट कितना आएगा 9 बजे के ऊपर, ठीक है, 9 AM पर। तो आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं 9 AM के ऊपर Screen show नहीं हो रहा. क्या शेयर नहीं हुआ है। सर हो रहा है सर, जूम कर रहे हैं काइंडली सर। शेयर है सर, थोड़ा सा बड़ा कर दें सर इसको बड़ा कर बस। दें बस सर, थोड़ा जूम कर दें सर। अभी से Yes, sir. अभी show हो रहा है. 1 मिनट, अभी गुजारा हो गया सर, अभी ठीक है। ये 2 फाइल, 1 मिनट, ये 2 फाइल शेयर होंगे, ठीक है, या 2 खोले हैं मैंने, तो इसको मैं थोड़ा सा दोबारा करता हूँ। अभी शेयर हो गया है। सर हो अभी गया नहीं? ब्लैंक है सर, वाइट ब्लैक नजर आ रहा है सर। नहीं हुआ सर अभी।
ये इसमें डिजिट जो है वो थोड़े से छोटे हैं ना, तो आपको नजर नहीं आएगा। अभी ये नजर आ रहे हैं आपको? सर पेंट फाइल शो नहीं नहीं सर, हो रहा सर। ग्रीन ब्लैक सर पेंट फाइल नजर नहीं आ रहा सर। तो किस तरह, ये तो शेयर हो गया है यार, किस सर, आ तरह रहा है नजर नजर। नहीं आ रहा? अभी हो गया अभी सर, शेयर अभी हो आ गया। रहा है। यस सर। अभी नजर आ रहे हैं आपको? यस सर। यस अच्छा, सर, आ रहा है नजर। तो सर मैं थोड़ा बड़ा कर दें सर। आपको CLF से कूलिंग लोड फैक्टर से रिलेवेंट इन्फो आपको दे रहा हूं, ठीक है? कि इसका मतलब क्या है? मतलब इसका ये है ना कि 9 AM पर लिट से 100 वाट्स हीट जो ह्यूमन बॉडी से रिजेक्ट हो गई है, ये 100 वाट 9 AM के ऊपर लोड का हिस्सा नहीं बनेगी ईयर का, बल्कि उसका कुछ पोर्शन ईयर के अंदर लोड का हिस्सा बन जाएगी, बाकी पोर्शन कुछ टाइम लेगी कि उसके ऊपर लोड का हिस्सा बन जाए, ठीक है ना? वो किस तरह? यहां पर आप देख ले, लिट से आप सुबह 8 बजे आए हैं और 10 बजे तक आपने क्लास ली है, रूम के अंदर आप बैठे हैं, ठीक है? और टोटल हीट इन 2 घंटों में आप लोगों ने 100 वाट्स रिजेक्ट की है, लेकिन आप 1 घंटे के बाद उसका इम्पैक्ट देखना चाहते हैं, या लेट से 9 AM पे आप आए हैं, ठीक है? और सॉरी 8 AM पर आए हैं और 10 बजे तक आप बैठे हैं क्लासरूम के अंदर और 2 घंटे आपके हो गए, तो 2 घंटों के बाद आप लोड का इम्पैक्ट देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप देख ले नंबर ऑफ आवर्स आफ्टर एंट्री इनटू स्पेस का जो 2 घंटों वाला कॉलम है, ये आप सेलेक्ट कर लोगे और 2 घंटे आप लोग उसके अंदर बैठे हैं, तो 2 घंटों का जो इंटरसेक्शन आएगा इनका, दैट इज 0.88। इसका मतलब ये है कि ओनली 100 का जो 0.88% है वो हिस्सा लोड का हिस्सा बन गया है, बाकी जो सर ये हीट स्क्रीन है शो वो नहीं अभी कुछ। जी स्क्रीन शो नहीं हो रहा। स्क्रीन शो? सर सर पेंट फाइल नजर आ रही है सर, पेंट फाइल शेयर है। सर हमें ब्लैक है, बिल्कुल शो नहीं हो रही है। देखिए सर कुछ स्टूडेंट को नजर नहीं आ रहा, कुछ को नजर आ रहा है सर। अभी सर मेरा भी ब्लैक हो गया, पहले सर पेंट फाइल नजर आ रहा है। तो ये क्या मसला है? अब 1 मिनट यार, मैं फिक्स करता हूं इसको। दोबारा ज्वाइन कर ले। अच्छा, एक मिनट। अभी नजर आ रहे हैं आपको? पे फाइल नजर आ रहे हैं या नहीं? नो सर, ब्लैक है यस सर। सर। अभी नजर आ रहे हैं? नो सर। सर स्क्रीन शेयर की नोटिफिकेशन आती है, लेकिन सर वो स्क्रीन जो होता है वो सर बिल्कुल ब्लैक होता है सर। तो इसमें ये लिखा ही बहुत अच्छा, आपको वो नजर तो आ रहे हैं ना वो स्लाइड्स, वो हो गया उससे सर, एक्सप्लेन करते सर हैं। अब आ रहा है। सर अभी नजर आ रहा है। एक्सप्लेन करा सर। तो कभी आता है कभी नहीं आता, ये क्या मसला है यार? अभी फिर चला गया सर। वो मैंने अनशेयर किया है ना, अभी दोबारा शेयर कर रहा हूँ, अभी देख लो नजर आ रहे हैं आपको या नहीं? सर आपकी तरफ से आ जाता है, मैं थोड़ा 5-6 सेकंड बाद नजर आता है। अभी नजर आ रहे हैं या नहीं? नहीं आ रहा नो सर। सर, सर ब्लैक है बिल्कुल। सर 5 सर, 1 slide मिनट से सब्र ध्यान करे, से सर 5-6 सेकंड सब्र करे, वो नजर आ जाएगा। अभी आ रहे हैं नजर? अभी जी सर, अब आ यस गया। यस सर, यस अब आ सर गया अभी सर। नजर आ रहा है। ब्लैंक पेपर। यस सर आ रहे हैं। अच्छा, तो अभी इसको सुन लो, ठीक है? अच्छा, मैं जो आपको बता रहा हूं ना, दैट इज द CLF डिस्कशन, कूलिंग लोड फैक्टर। इसका मतलब ये है कि जो हीट रिजेक्ट होगी वो उसी टाइम लोड का हिस्सा नहीं बनेगी, मतलब कि 8 बजे पर या 9 बजे पर जो हीट रिजेक्ट हो गई है, लेट से वो 100 वाट्स है, या 10 लेट से 8 बजे आप आए हैं, बिल्डिंग के अंदर बैठे हैं और 10 बजे आप देखना चाहते हैं कि मेरी बॉडी है उससे कितनी हीट रिजेक्ट हो गई है,
तो जो हीट रिजेक्ट होगी ना इन 2 घंटों में, लेट्स से वो रिजेक्ट हो रही है 100 वाट्स, ठीक है, लेकिन 10 बजे के बाद आप रूम के अंदर देखेंगे तो उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो 100 वाट्स नहीं होगा बल्कि उससे कम होगा, ठीक है। और उसको उसकी जो ट्रिक है, दैट इज बिकॉज द रेडिएशन हीट सोर्स टेक टाइम्स टू रिजेक्ट द हीट टू द ईयर, ठीक है, क्योंकि बॉडी से जो रेडिएशन मोड से हीट ट्रांसफर होगी वो ट्रेवल करेगी ईयर के अंदर, कुछ एब्जॉर्ब होगी, कुछ नहीं होगी, कुछ सरफेस से टकराएगी, उसके अंदर एब्जॉर्ब होगी, तो फिर उस सरफेस से जब वो हीट एब्जॉर्ब हो गई है वो रूम के ईयर के अंदर एब्जॉर्ब होगी, तो उसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस टेबल के अंदर यहाँ पर लेफ्ट कॉलम में लिखा है आवर्स इन स्पेस, कि आपने उस बिल्डिंग के अंदर कितना टाइम गुजारा हुआ है, ठीक है, एंड नंबर ऑफ आवर्स आफ्टर एंट्री इनटू द स्पेस, के लेट से 8 बजे आप आए हैं और 1 घंटे के बाद आप देखना चाहते हैं कि कितना लोड इसका आया हुआ है, ठीक है। तो लेट से आप सुबह 8 बजे आपने 8 AM से 10 बजे तक आपने क्लास ली है, ठीक है, 10 AM तक, तो 10 बजे के अंदर 2 घंटे हो गए और इन 2 घंटों के अंदर लेट से आपकी बॉडी से इन 2 आवर्स में 100 वाट्स हीट रिजेक्ट हो गई है। अब ये 100 वाट्स रूम के ईयर को 100 वाट्स हीट मिलेगी या कम मिलेगी, उसका इम्पैक्ट आपको इस टेबल से शो होगा। लेट से 2 आवर्स आपने उसके अंदर गुजारे हैं और 2 घंटों के बाद आप उसका इम्पैक्ट देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर देख ले, इस 2 के नीचे कॉलम में लिखा है 0.88। इस 0.88 का मतलब ये है कि इस 100 वाट का 88% जो हीट था वो रूम के ईयर को एक्चुअली मिल गया है, बाकी 12% हीट जो है अभी वो टाइम लेगी कि इस रूम ईयर का लो का हिस्सा बन जाए। समझ रहे हो इसको? यस सर। ठीक है ना। और यहाँ पर आप अगर आप देख लेना इस पेंट फाइल में, ये हीट पूरी की पूरी हीट एंट्री टाइम से लेकर जो 2 घंटे आपने लगाए हैं, जब ये पूरी की पूरी रूम को मिलेगी तो ये तकरीबन 10 घंटों के बाद यहाँ पर खत्म हो जाएगी ये पूरी की पूरी। तो मिल स्टार्ट तो बिल्कुल फर्स्ट आवर से हुई थी 8 AM से, लेकिन वो रूम का लोड बनने के लिए उसको जो टाइम रिक्वायर्ड था वो 10 घंटे रिक्वायर्ड था, ठीक है। उसके बाद जो है इस 2 घंटों के दौरान जो जितनी हीट थी वो इस 10वें घंटे में वो खत्म हो जाएगी और फिर कोई लोड नहीं आएगा। इसी तरह 4 घंटे का आप देख ले, 4 घंटे के लिए 0.75, 0.88 और चौथे घंटे में वो 0.95 तक पहुंच जाएगा, फिर जो है वो कम होता जाएगा, क्योंकि 4 घंटों के बाद उससे वो लोग निकल जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, तो वो लोड कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, अल्टीमेटली वो पूरा का पूरा लोड जो खत्म होगा वो 14 घंटों में इधर खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो? यस सर, बिल्कुल। ये टाइम लेग शो कर रहा है ना कि आप 4 घंटों के लिए उसमें बैठे थे, लेकिन वो जो लोड का हिस्सा बन रहा था उसमें टाइम लग रहा था, तो वो टाइम लेग जो है उसकी जो कॉम्बिनेशन है आवर्स इन स्पेस के साथ वो यहाँ पर इस टेबल में गिवन है, ठीक है। और सर ये जो जोन है, ये लोकेशंस है? हाँ, जोन्स का मतलब ये है कि मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स मुख्तलिफ मटेरियल्स के बने होते हैं, ठीक है। लेट से कुछ स्ट्रक्चर में नीचे का जो वो होगा कारपेट लगी होगी, कुछ की जो फायर ब्रिक्स है उसकी प्रॉपर्टी कुछ और होगी, तो ये जोन जो होते हैं ये बिल्डिंग की प्रॉपर्टीज डिफाइन करता है। जोन ए की जो बिल्डिंग होगी वो एक मटेरियल से बनी होगी, उसकी कुछ और प्रॉपर्टीज होगी, जोन बी की मटेरियल की कुछ और प्रॉपर्टीज होगी। तो इसमें आप लोग ना जाए कि ये जोन क्या है, या मैं आपको मतलब बताऊंगा कि जोन ए के लिए आप करें तो आपको ये इसका जो प्रोसीजर है वो आपको आना चाहिए। तो अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए ना पेपर में या जो आपका क्विज होगा उसमें अगर मिल जाए, अगर मैं आपसे कहूं कि 2 घंटे जो है लोग 2 घंटों के लिए बैठे हैं, तो आप उसका इम्पैक्ट देख ले, 8 घंटे बाद जो है उसका लोड का इम्पैक्ट कितना होगा, तो आप उसका फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो CLF 8 और इस 2 घंटों की जो इंटरसेक्शन से जो वैल्यू आएगी, CLF की जगह आप वो वैल्यू लिख दोगे, ठीक है। तो वो वैल्यू आपका जो फाइनल जो इक्वेशन था जिसको आपने स्लाइड्स में देखा है उसमें CLF की वैल्यू इस तरह से आप देख लोगे, ठीक है ना। यस सर, राइट सर।
कोई क्वेश्चन है इससे रिलेवेंट तो आप पूछ ले, अदरवाइज आई विल शेयर द स्लाइड्स। एक्सक्यूज मी सर। जी हाँ हाँ सर हमने सर आपने कहा ना कि हमने सुबह 8 बजे से 10 बजे थे, लेकिन हमने स्टार्ट सर 1 से लिए, हम किस तरह ये सर लेंगे स्टार्ट? 1 से क्या मतलब? ये तो एंट्रेंस टाइम को शो कर रहे हैं ना कि आप किस मतलब एंट्रेंस टाइम से लेकर आपके कितने घंटे गुजर गए हैं। ठीक है, तो पहला 1 घंटा गुजरेगा, फिर दूसरा गुजरेगा, तीसरा गुजरेगा, इस तरह से गिवन है। तो 8 बजे आप आए हैं, 10 बजे तक आप बैठे हैं, क्लास हो गई, आप क्लास से बाहर निकल गए, लेकिन आपकी बॉडी से जो रेडिएशन मोड से हीट ट्रांसफर हो गई थी, अभी भी वो रेडिएशन रिफ्लेक्शन और वो प्रोसेस पूरा चलता रहेगा। तो वो जो मुख्तलिफ सरफेस के अंदर इब्जार्ब होगी, उससे जब हीट निकलेगी और ईयर को मिलेगी और फाइनली ईयर के अंदर वो आएगा, तो उसमें टाइम लगता है। तो आप 10 बजे निकले होंगे, लेकिन उसका इम्पैक्ट 12 बजे तक जो है वो चलता रहेगा। ये एग्जैक्टली इसी तरह से है कि आप किसी वेडिंग हॉल में बैठे हैं, फंक्शन हो गई, लेकिन फंक्शन के 3 घंटे बाद आप चले गए उस वेडिंग हॉल में, उसी तरह जो है वो गर्मी मौजूद थी। वो ये जो गर्मी उसमें मौजूद रहती है, ये इसी फिनोमेना से, ये टाइम लेग का जो फैक्टर है कि कुछ टाइम के बाद भी उसका असर जो मौजूद रहता है, वो एग्जैक्टली इस बिहेवियर से जो है उसके अंदर जो ये फिनोमेना इस तरह से क्रिएट हो जाता है कि उस बिल्डिंग में। जी समझ रहे हो या नहीं? और सर ये जो वर्टिकल में हमें गिवन है, ये हमने जितने सर गुजारे 2 4 6 8 ये वाले सर जो वर्टिकल कॉलम है। वर्टिकल कॉलम में जो गिवन है, अच्छा क्या, तो क्या क्वेश्चन है सर? ये किसको रिप्रेजेंट किया है, ये जो वर्टिकल कॉलम है 2 4 6? 2 4 6 ये आपने उस रूम के अंदर कितना टाइम गुजारा है। अगर आप 18 घंटों तक उसके लिए बैठे हैं, तो ये 18 वाला कॉलम जो यहाँ पर है ये सेलेक्ट कर लोगे। 10 घंटों के लिए उस रूम के अंदर आप बैठे हैं, तो ये सेलेक्ट कर दोगे। लेकिन आप 10 घंटों के लिए बैठे हैं, लेकिन एंट्रेंस टाइम 1 आवर के बाद आप मतलब आप आए हैं और 8 बजे ही आप लोड कैलकुलेट कर रहे हो, तो उसके लिए जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 0.75। ठीक है, अब 10 घंटों के लिए पूरी ड्यूरेशन है आपकी सिटिंग टाइम, लेकिन 9 बजे आप देखना चाहते हैं, तो आपके पास ये 0.88 उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह लेट से दोपहर 12 बजे आप उसका इम्पैक्ट देखना चाहते हैं, तो उसकी जो वैल्यू होगी एंट्रेंस टाइम 8 AM से आप मतलब जो 4 घंटे बनते हैं, आफ्टर 4 आवर्स जो उसकी वैल्यू बनेगी वो आपकी ये बन जाएगी। ओके सर, सही क्लियर है सर। अच्छा, और किसी का क्वेश्चन हो तो आप पूछ ले। कोई इन्फॉर्म नहीं है तो पूरा का पूरा लोड इंस्टेंटेनियस लोड या आप कंसिडर कर लेंगे, उसके अंदर CLF की वैल्यू आप 1 पुट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, सो लेट्स मूव टुवर्ड द स्लाइड अगेन, और उसमें देखते हैं कि मजीद क्या हमने कवर करना है। अच्छा, ये शेयर हो गया स्क्रीन? स्क्रीन शेयर हो गया या नहीं? यस सर, होगी। यस यार तो थोड़ा सा जल्दी बताया करो ना, सर, वो लोड टाइम वैसे खराब यस सर, हो गई ये। सर आज प्रॉब्लम कर रही है ना, तो इस वजह से हम वेट कर रहे हैं। जल्दी सर शेयर नहीं 5-6 सेकंड लगते हैं सर। टाइम के बाद। क्या मतलब प्रॉब्लम कर रहे हैं? तो इस वजह से वो सर शेयर जो है ना सर, शेयर टाइम टाइम लगता है। लग रहा है सर। सर आज टाइम लग रहा है कि मतलब अच्छा, स्क्रीन टाइम स्लाइड नहीं शेयर हो रही। होने में टाइम लगता है? जी सर। अच्छा ठीक है, खैर है, सही है। सो अच्छा, this is the table which is giving you the total heat gain, the sensible heat gain, friction, and here the activity is given. If you are sleeping, then the total heat rejected from the human body will be 70 watts, while out of the 70 watts 75% will be sensible heat and 25% will be latent heat. ठीक है, if you are seated quiet, then your body will reject 100 watts of heat,
and 60% will be sensible and 40% will be latent heat. ठीक है? If you are standing only, you will reject 150 watts, and again 50% will be latent and 50% will be sensible. If you are walking at the rate of 3.4 kilometer per hour, your body will reject 305 watts. If you are doing the office work, you will reject 150 watts. Similarly, if you are teaching, then you will reject 125 watts, because the teaching required energies, and as soon as the larger the energy requirement for the body, the larger will be the heat production in the body. ठीक है? तो उस लिहाज से ज्यादा एनर्जी जो है आप रिजेक्ट करेंगे. ठीक है? इंडस्ट्रियल वर्क्स में जो लेबर्स वगैरह होते हैं, वो भी ज्यादा हीट रिजेक्ट करती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल जोन के अंदर तो टेम्परेचर आया है और दूसरा वो काम भी बहुत लेबोरियस टास्क करते हैं. ठीक है? तो उसमें जो बड़े सेंसिबल और लेटेंट हीट रिजेक्ट होगी वो 0.35 है. लेटेंट हीट ज्यादा रिजेक्ट होगी, सेंसिबल कम होगी, और 300 to 600 वाट्स उसमें उसकी रेंज है. डिपेंड करता है कि एक्टिविटी कौन सी है. तो उस लिहाज से हीट रिजेक्शन, अगर हाई एक्टिविटी कर रहे हैं तो ज्यादा हीट रिजेक्ट करेगी, कम कर रहे हैं तो कम हीट रिजेक्ट करेगी. ठीक है? तो ये वो टेबल है जिसमें ये वैल्यूज गिवन है. इसके अलावा कुछ और भी मतलब एक्टिविटीज मेंशन है जिसके मतलब जो टोटल हीट है बॉडी से जो रिजेक्ट होगी वो भी उसमें आ सकती है. ठीक है? तो वो आपको मैं जो बुक है उसमें भी आपको दे दूंगा. मुख्तलिफ एक्टिविटी के लिए मुख्तलिफ हीट रिजेक्शन रेट गिवन है, तो उससे जो है आप जो भी एक्टिविटी आपको गिवन हो उसके मुतालिक आप हीट है वो आप फाइंड कर सकेंगे. ठीक है? तो लेट्स से किसी रूम के अंदर 4 बंदे सो रहे हैं. ठीक है? और आप सेंसिबल हीट फाइंड करना चाहते हैं और लेटेंट हीट फाइंड करना चाहते हैं. ठीक है? तो n की जगह 4 आ जाएगी. सेंसिबल हीट पर पर्सन ये इस टेबल से आ जाएगी जो 70 वाट है पर पर्सन, ये आ जाएगी. ठीक है? और सेंसिबल लोड उसका 70 का कितना होगा, 0.75 मल्टीप्लाई कर लोगे तो सेंसिबल हीट जो पर पर्सन आएगी वो 70 मल्टीप्लाई बाय 0.75 आ जाएगी, और बाकी जो 25% है वो लेटेंट आ जाएगी. तो दोनों आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी. ठीक है? अब अगर आपको ये कहा है कि वो 4 लोग सुबह 8 बजे से 10 बजे तक उस रूम के अंदर सोए हैं, तो आपके पास टोटल ड्यूरेशन आएगी कि उस रूम के अंदर 2 घंटे उन्होंने गुजारे हैं. ठीक है? और आपसे अगर कह दे कि 10 बजे के ऊपर ये लोड कितना आएगा, तो उसके लिए CLF फैक्टर आप इस टेबल से फाइंड कर लोगे. ठीक है? तो 2 घंटे उन्होंने रूम के अंदर गुजारे हैं और 10 बजे के ऊपर आपको देखना चाहते हैं, तो 2 AM से 10 बजे तक जो ड्यूरेशन है वो 2 आवर है, और 2 घंटे बाद आप लोड देखना चाहते हैं तो 2 घंटों के बाद एंट्री के बाद 2 घंटों के बाद उसका लोड कितना आएगा, तो CLF फैक्टर आप उससे फाइंड करके इस पूरे जो हीट आएगी n मल्टीप्लाई बाय सेंसिबल हीट गेन फैक्टर पर पर्सन, इसकी मल्टीप्लिकेशन के साथ CLF की वैल्यू मल्टीप्लाई करके आपके पास टोटल सेंसिबल हीट रिजेक्टेड बाय द बॉडी वो कैलकुलेट हो जाएगी. ठीक है? सर ये सेंसिबल हीट गेन फैक्टर से कहाँ से आएगा? ये गिवन है ना इस टेबल में, आपको नजर आ रहे हैं ना स्क्रीन पर. ये टोटल है, टोटल हीट गेन इन वाट. सर स्क्रीन ब्लैक हो गई है. जी सर आप अच्छा बताएं. अभी नजर आ रहे हैं या नहीं? यस सर दोबारा ब्लैक हो चलेगी. गई. सर बात सुने. दोबारा चली गई. सर अभी ठीक है. सर आप सर एक बार अभी सर अब सही हो गया सर. आप दोबारा आ बताएं. जाए सर. पता है क्या होता है कि आप पढ़ा रहे आगे होते हैं तो हमेशा पीछे वाला शो हो रहा होता है, वो इस वजह से. एक बार सर आप जो क्लास लीव कर दें. क्लास लीव कर लूं फिर दोबारा आ जाऊं? जी सर रीज्वाइन करने हो सकता है, उससे ठीक हो जाए, क्योंकि आप फिर आगे पढ़ा रहे होते हैं, हमें वो पीछे वाला नजर आ रहा होता है. अभी कौन सा आपको नजर आ रहा है? अभी तो स्लाइड नंबर 6 नजर आ रही है. अभी टेबल नजर आ रहा है. वो टेबल जिसमें वो हीट गिवन है ना, तो आपका जो क्वेश्चन जी था सर, एक्टिविटी इसमें सेंसिबल टोटल हीट हम कौन सा लेंगे, तो ये आप देख जी लेना सर. सेकंड थर्ड कॉलम के अंदर सेंसिबल हीट गेन फ्रिक्शन गिवन है. इसका मतलब ये है ना कि आउट ऑफ टोटल हीट सेंसिबल पार्ट उसका कितना है, तो दैट इज 0.75. इस 0.75 को
इस 70 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो स्लीपिंग के दौरान पर इंडिविजुअल जो हीट रिजेक्ट होगी ना वो 0.75 मल्टीप्लाई बाय 70 से आ जाएगी। ठीक है सर, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ 4 से, अगर 4 बंदे सो रहे हैं तो 4 से मल्टीप्लाई सर। करोगे। ठीक हो गया सर। और अगर 2 घंटों के लिए उस रूम के अंदर सोए हुए हैं और आप 1 घंटे के बाद उसका एंट्रेंस टाइम के 1 घंटे बाद आप उसका CLA फाइंड करना चाहते हैं तो 2 और 1 के इंटरसेक्शन से जो वैल्यू आएगी ना यहाँ पर, ये वैल्यू ये स्लाइड तो शेयर हो गया है ना, ये जो वैल्यूज है मुख्तलिफ फॉर पीपल। जी सर। तो 2 और 1 के इंटरसेक्शन से 0.75 आ रहा है। तो एंट्री के 1 घंटे बाद उसका लोड जो आएगा ईयर के अंदर वो कितना होगा, वो आप 0.75 मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय सेंसिबल हीट फैक्टर पर पर्सन, इससे जो वैल्यू आएगी वो पूरी की पूरी मल्टीप्लिकेशन से वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे हो? यस सर। जी सर। अच्छा, so let's move toward the next slide. अच्छा, ये मैंने लिया है ये टेबल CP अरोरा बुक से जो आपके उसमें गिवन है, लाइब्रेरी में अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पर कुछ और एक्टिविटीज गिवन है और वो एक्टिविटी मेटाबॉलिक रेट से लिंक की गई है। एंड देन द हीट रिजेक्टेड सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट इज फर्दर कैटेगराइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। के रूम के अंदर अगर 20 डिग्री सी ड्राई बल्ब टेम्परेचर हो और एक्टिविटी अगर इंडिविजुअल सीटेड एट रेस्ट है तो मेटाबॉलिक रेट से हीट रिजेक्ट होगी 115, उसमें से सेंसिबल पार्ट होगा 90 और लेटेंट पार्ट होगा 25 वाट्स। ठीक है, इसी तरह अगर 22 डिग्री सी है तो सेंसिबल पार्ट हो जाएगा 80 एंड लेटेंट पार्ट बढ़ जाएगा 35। ठीक है, फिर 24 डिग्री सी पर सेंसिबल पार्ट कम हो जाएगा 75 और लेटेंट पार्ट बढ़ जाएगा 40। ये टेम्परेचर अगर रूम के अंदर ज्यादा बढ़ता है तो लेटेंट पार्ट क्यों बढ़ जाता है और सेंसिबल क्यों कम हो जाता है? आपसे क्वेश्चन है ना, वही हीट टोटल 115 एक्टिविटी सीटेड एट रेस्ट 115 हीट रिजेक्ट हो रही है, टोटल वही वैल्यू है। लेकिन अगर रूम के अंदर 20 डिग्री सी है सेंसिबल पार्ट की कुछ और वैल्यू है, वो टेम्परेचर आप 20 से 22 कर दे तो सेंसिबल पार्ट कम हो जाएगी, लेटेंट बढ़ जाएगी। ये क्यों? बिकॉज द सेंसिबल हीट ट्रांसफर इज द फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है ना, तो टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी सेंसिबल हीट आसानी से फ्लो करेगी। जितना टेम्परेचर डिफरेंस आप कम कर जाएंगे ह्यूमन बॉडी और ईयर की टेम्परेचर डिफरेंस, उतनी सेंसिबल हीट जो है कम फ्लो करेगी। तो इसलिए जो सेंसिबल हीट ट्रांसफर कम होगी तो उसके बरअक्स आपने लेटेंट हीट बढ़ानी होगी, तो लेटेंट हीट आपकी बॉडी से ज्यादा एवापोरेशन होगी, ज्यादा स्वेट निकलेगा, वो ज्यादा एवापोरेट होगा और इस तरह से जो है वो हीट ट्रांसफर होगी आपकी बॉडी से ईयर को। ठीक है, यस सर। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ ले। सर ये जो नेट लोड कैलकुलेशन में सर ये दोनों काउंट होती है सर, सेंसिबल और लेटेंट? हाँ एग्जैक्टली, दोनों काउंट होगी ना। तो सर हम कलेक्टिवली फिर ये फाइंड कर सकते हैं ना, अगर हमारे पास ये 115 वाट टोटल जो गिवन है, हाँ, तो ये हम डायरेक्ट इससे नेट लोड फाइंड कर सकते हैं ना फिर? हाँ नेट भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन अगर आपको याद हो साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस में हम एक फैक्टर डिफाइन करते थे, सेंसिबल हीट फैक्टर, SHF जिसको कहा जाता था, और वो हम प्रोटेक्टर वगैरह से फाइंड कर देते। तो इसके लिए जो लोड आप कैलकुलेट करोगे ना तो आपको SHF भी पता होना चाहिए कि इस पूरे लोड का सेंसिबल पार्ट जो इक्विपमेंट के ऊपर आएगा वो कितना होगा और लेटेंट पार्ट कितना होगा। तो उससे वो आप प्रोसेस डिफाइन कर सकते हैं कि इस प्रोसेस के थ्रू मैं इस पूरे लोड को कवर कर सकता हूं। सही सर, ठीक है। समझ रहे हो ना? मतलब 115 वाट्स से कोई अंदाजा नहीं हो रहा कि इसमें सेंसिबल हीट कितनी रिजेक्ट होगी और लेटेंट हीट कितनी रिजेक्ट होगी। जी सर बिल्कुल। अच्छा,
So this is again the next टेबल, और इसमें वैल्यूज में कुछ डिफरेंस होगा, लेकिन उससे आप मतलब वो ना करे। बेहतर यही होगा कि इशरे की अगर कोई पब्लिश आर्टिकल मुझे मिल जाए तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, तो उसी को आप एक ही मतलब उसको आप फॉलो करें, ठीक है? या मैं आपको बताऊंगा कि ये टेबल्स आप फॉलो करें, बाकी आप छोड़ दे, ठीक है? ओके सर। अच्छा, नो द लाइटिंग लोड। लाइटिंग आपको पता है कि रूम के अंदर लाइटिंग सिस्टम्स होते हैं, ठीक है? वो आप ऑन ऑफ करते हैं क्योंकि लाइटिंग आपको रिक्वायर्ड होती है, उसका भी इफेक्ट आता है, लोड आता है, ठीक है? व्हाट इज लाइट? एक्चुअली लाइट इज द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, एंड रेडिएशन is actually that radiation is a form of heat also. तो जब लाइट आप ऑन करते हैं तो एक तो अगर मुख्तलिफ लाइट्स होते हैं, ठीक है? एक लाइट वो होती है जो 100 वाट बल्ब आप लोगों ने देखा हो ना, उसमें एक कॉइल सी होती है, वो ग्लो करती है और उसकी ग्लोइंग से वो लाइट इमिट होती है, ठीक है? तो वो हीटिंग भी कस करती है और प्लस वो लाइट भी इमिट करती है, ठीक है? इसके बरक्स जो आपके रॉड्स वगैरह हैं या जो एनर्जी सेवर्स हैं उसमें लाइट तो मैकेनिज्म मुख्तलिफ होता है, ठीक है? तो जब लाइट इमिट होती है वो रेडिएशन है, वो ट्रेवल करेगी ईयर के थ्रू, ईयर के अंदर कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी, कुछ उससे गुजर के सामने दीवारों से टकरा जाएगी, अगर चेयर है उससे टकरा जाएगी, अगर उसके अलावा कोई और सरफेस सामने आ जाए तो उससे टकरा जाएगी। अब उस सरफेस पर डिपेंड करती है कि उस सरफेस की एब्जॉर्बिविटी कितनी है, ठीक है? उसकी रिफ्लेक्टिविटी कितनी है। तो जो उसकी एब्जॉर्बिविटी है उस सरफेस की, उसी को रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेगी, बाकी रिफ्लेक्ट कर लेगी। अल्टीमेटली ये रिफ्लेक्शन प्रोसेस होता चले जाएगा, और जितनी ही एनर्जी इमिट हो गई है उस लाइटिंग इक्विपमेंट से, अल्टीमेटली वो पूरी की पूरी लोड का हिस्सा एक स्टेज के ऊपर बन जाएगी। लेकिन ये कुछ टाइम लेगी, जिस तरह से ह्यूमन बॉडी से रेडिएशन मोड से हीट ट्रांसफर होती थी और वो रेडिएशन एब्जॉर्ब होने में ईयर के अंदर या ईयर के को हीट करने में टाइम लेती थी, इसी तरह ये लाइटिंग सिस्टम भी कुछ टाइम लेगी, उसके बाद जो है ईयर के अंदर लोड का हिस्सा बन जाएगी, ठीक है? तो अगर आपने लाइटिंग लोड जो हीट ऐड कर रहा है, जो कि एक्चुअली सेंसिबल हीट होगा, क्योंकि लाइटिंग जब प्रोड्यूस होती है तो उसमें ना मॉइस्चर ऐड होती है ना मॉइस्चर निकलती है रूम से, तो सिर्फ सेंसिबल लोड उसका आएगा। और वो कैलकुलेट आप किस तरह से करेंगे? इंस्टॉल वाटेज जो है उसकी इंस्टॉल कैपेसिटी पूरे लाइटिंग, पूरे जो लाइट मतलब एनर्जी सेवर्स हैं उसकी जो वो है क्या कहते हैं उसको, जो रेटिंग है उसकी, लेट से 100 वाट का लाइट आपने लगाया हुआ है और 4 लाइट्स हैं, तो पूरी इंस्टॉल कैपेसिटी आपके 4 मल्टीप्लाई बाय 100 बन जाएगी। अब उसका यूजेज फैक्टर क्या है? जिस टाइम पर आप लोड कैलकुलेट कर रहे हो वो उस टाइम ऑन है या नहीं ऑन, मतलब दिन के मुख्तलिफ वक्त के ऊपर जो लाइट्स आप ऑन करते हैं वो डिपेंड करता है कि उस बिल्डिंग के ऊपर अगर सन रे गिर रही है और उससे नेचुरल लाइटिंग हो रही है रूम के अंदर, तो आप लाइट्स को कुछ ऑफ करेंगे, कुछ ऑन आप की होगी। तो यूजेज फैक्टर ये शो करती है कि आउट ऑफ टोटल कितने लाइट्स ऑन है, तो आउट ऑफ टोटल कैपेसिटी how much of the capacity is actually utilized at that particular time, तो वो यूजेज फैक्टर आ जाएगा। ये एक्चुअली रेशियो है इंस्टॉल कैपेसिटी, सॉरी द यूज कैपेसिटी डिवाइड बाय द इंस्टॉल कैपेसिटी। तो यूज फैक्टर कितना है, कितना उसमें यूज हो रहा है, तो आप इंस्टॉल कैपेसिटी के साथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्चुअली उतनी रेडिएशन जो है इमिट होगी। फिर एक दूसरा फैक्टर है जिसको बेलिस्ट फैक्टर कहते हैं, ठीक है? कुछ लाइट्स के अंदर चोक यूज होता है, कुछ के अंदर चोक यूज नहीं होता। तो चोक के अंदर एक जो एक्चुअली जो इसकी कैपेसिटी गिवन होती है ना, वो लाइटिंग कैपेसिटी की गिवन होती है, ठीक है? और चोक में एक्स्ट्रा एनर्जी यूटिलाइज होती है और वो एक्चुअली हीट में कन्वर्ट होती है। तो जो इनकेंडेसेंट लैंप्स होते हैं उनकी जो बेलिस फैक्टर है दैट इज 1, और फ्लोरेसेंट जो लाइट्स होते हैं उनकी बेलिस फैक्टर होती है 1.25, क्योंकि 1.2 ये 0.25 एक्स्ट्रा एनर्जी हीट फॉर्म में कन्वर्ट होती है उसमें, तो वो भी आपके लोड को इफेक्ट करती है। तो डिपेंड करता है कि किस टाइप की लाइट आप लोग
यूज कर रहे हो, ठीक है। और फिर ये CLF फैक्टर उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। उसका ट्रिक वही है कि जो मतलब लाइटिंग से 100 वाट्स लाइट एमिट हो गई है, तो ये 100 वाट्स एकदम से ईयर को 100 वाट्स एनर्जी नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद मिलेगी। और इसी तरह लाइटिंग सिस्टम के लिए भी ये CLF के टेबल्स गिवन होते हैं, उससे आप उसके लिए ये CLF फर्स्ट फाइंड करोगे और फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे। जी, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ ले। जी, क्वेश्चन है आपका? हेलो? नो सर, क्लियर है सर। एक्सक्यूज मी सर। अच्छा, ये क्वेश्चन है आप लोगों का? इस पर आप समझे ये यूजेज सर, ये फैक्टर यूजेज फैक्टर की सर यूजेज फैक्टर का ये मतलब है ना कि लेट से आपने रूम के अंदर 4 लाइट्स लगाए हैं, ठीक है, और हर लाइट की जो कैपेसिटी है वो 100 वाट्स है, और टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 400 हो जाएगी ना? यस सर। अच्छा, लेकिन उसमें लेट से 2 बजे आप लोड कैलकुलेट कर रहे हो और उस टाइम आपने सिर्फ 2 लाइट्स ऑन की है, तो उस टाइम उसकी कैपेसिटी मतलब यूजेज उसका क्या आ जाएगा? सिर्फ 2 लाइट्स है ना, और 2 लाइट्स की कितनी कैपेसिटी बन जाएगी? 200 बन जाएगी। तो 200 डिवाइड बाय 400 आपका यूजेज फैक्टर आ जाएगा। ओके सर, सही है, थैंक यू। अच्छा, और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ ले। किसी का क्वेश्चन है? मोहम्मद फहद, अमीर हमजा, नौमान अली, आप समझे हैं या नहीं? यस सर। जी सर समझ आ गई है, ठीक है सर। अच्छा, ठीक है। सो इसका जो वो है टेबल है वो यहाँ पर गिवन है, ठीक है। कूलिंग फॉर लाइट्स अगेन वही कंसेप्ट है, ठीक है। 1 2 4 is the number of hours after the lights are turned on. लाइट आवर्स, लाइट्स ऑन कितने घंटों के लिए ऑन है? 8 घंटे। और 1 घंटे बाद आप एंट्री मतलब ऑन आपने 8 बजे किया है और 9 बजे आप उसका इम्पैक्ट देखना चाहते हैं, तो 9 बजे उसका इम्पैक्ट इस तरह से आएगा, ठीक है। फिर मतलब जिस घंटे के ऊपर आप उसका CLF फाइंड करना चाहते हैं, लेट्स से 5 आवर्स आफ्टर द लाइट्स आर ऑन, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? CLF 8 घंटों के लिए अगर ऑन है तो उसका इम्पैक्ट आएगा 7 घंटे बाद जो है उसका इम्पैक्ट आएगा 0.97, ठीक है। और इस तरह जो है वो चलता जाएगा, जो पूरी लोड आएगी वो पूरे 24 आवर्स के लिए उसका कुछ इम्पैक्ट होगा। अगर बिल्डिंग के अंदर आपने 8 घंटों के लिए लाइट्स ऑन किए ना, उसका इम्पैक्ट जब हीटिंग का इम्पैक्ट खत्म होगा, उस रूम के अंदर जो हीट ऐड होगी वो पूरे 24 आवर्स के लिए चलती रहेगी। समझ रहे हो? और सर ये जो हीट ऐड होगी यस सर। सर, ये सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज करेगी ना, मतलब ये सेंसिबल होगी। एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली टेम्परेचर इंक्रीज करेगी, कंसिडरेबल हीट ट्रांसफर टेक प्लेस, ठीक है। In case of the human body, जो source responsible थी ना for the time lag of the heat transfer between the human body and actually taken by the ear, that was only the mode of the heat transfer through the radiation. उस वजह से आता, ठीक है। यस सर, राइट सर। तो रेडिएशन से हीट ट्रांसफर जो होती है दैट इज सेंसिबल हीट एक्चुअली, और जो उसमें उस केस में जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, जो लाइटिंग सिस्टम से हीट मिलती है को, दैट इज आल्सो थ्रू द रेडिएशन एंड दैट इज आल्सो द सेंसिबल हीट ट्रांसफर। तो टेम्परेचर बढ़ेगा उसका, ह्यूमिडिटी विल रिमेन अनअफेक्टेड। अगर स्टीम मिल रही है तो सिर्फ उसका सुपर हीटेड रीजन टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ह्यूमिडिफाई नहीं होगा, तो जितनी ह्यूमिडिटी ईयर की है वो वही रहेगी, दैट विल रिमेन अनअफेक्टेड। राइट सर, थैंक समझ रहे हो? यू। यस सर।
No, the load due to equipments and appliances. Equipment and appliances contribute to both sensible and latent internal loads. अगर आपने लेट से लैपटॉप लगाया हुआ है तो उससे सेंसिबल हीट ऐड होगी. अगर आपने कोई माइक्रोवेव ओवन लगाया हुआ है या कोई और लेट से काफी बना रहे हो या चाय रूम के अंदर आप बना रहे हैं, ठीक है, तो चाय बनाने में कुछ सेंसिबल हीट ऐड होगी, कुछ लेटेंट हीट ऐड होगी. अगर कोई इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, लेट से लैपटॉप यूज कर रहे हो, तो उससे सिंपली सेंसिबल हीट ऐड होगी. तो एप्लियंस पर डिपेंड करता है कि कौन सा एप्लियंस आप कर रहे हो, ठीक है. तो दोनों भी हो सकते हैं लोड और सिंगल भी हो सकता है सेंसिबल पार्ट, ठीक है ना. तो एग्जैक्टली वही तरीका है कि इंस्टॉल वेटेज उसका कितना है वाट्स में, यूजेज फैक्टर कितना है और उसका CLF कितना है अगर सेंसिबल हीट है, ठीक है. और इसी तरह इंस्टॉल वाटेज उसका कितना है और लेटेंट हीट फ्रिक्शन उसका कितना है. जितना होगा उस हिसाब से आप उसके मल्टीप्लाई आप करेंगे, ठीक है. समझ रहे हो? यस सर. अच्छा, कूलिंग लोड फैक्टर फॉर हुडेड इक्विपमेंट्स, ये उसका वो इक्विपमेंट्स का आ जाएगा, ठीक है. अच्छा, ये मुख्तलिफ इसमें गिवन है, मुझे भी नजर नहीं आ रहा, इसको फुल स्क्रीन पर मैं करता हूं शायद नजर आ जाए, ठीक है. मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स के हीट गिवन है, ठीक है, सेंसिबल और लेटेंट और टोटल, और विद हुड एंड विदाउट हुड उसकी कैपेसिटी गिवन है, ठीक है. और ये किस फॉर्म में है? BTUs में है. तो BTUs में अगर बाकी हीट्स आप वाट्स में ले रहे हैं तो उसको भी आप BTU पर आवर से आप वाट्स में कन्वर्ट करोगे, ठीक है. इसी तरह ये देख ले, इलेक्ट्रिक नो हुड रिक्वायर्ड, बारबेक्यू आप बना रहे हैं तो उससे कितनी हीट रिजेक्ट होगी. लेट्स से आप काफी ब्रीवर है, उसमें कितनी हीट रिजेक्ट होगी वो भी गिवन है. फिर काफी ब्रीवर की भी मुख्तलिफ स्पेसिफिकेशन है, उस लिहाज से कितनी हीट रिजेक्ट होगी, ठीक है. इसी तरह एक कुकर है, एक कुकर से कितनी हीट, अगर 12 एग्जॉस्ट में आप कुक कर रहे हो तो कितनी हीट रिजेक्ट होगी. तो हर एक के लिए पूरे एक लिस्ट गिवन है, ठीक है. इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं टोस्टर ऊपर लिखा है, टोस्टर में कितनी हीट रिजेक्ट होगी, तो हर उसकी डिटेल गिवन है. तो जो भी इक्विपमेंट आपको गिवन हो उस लिहाज से आप उसका हीट, उसमें अगर रूम के अंदर यूटिलाइज हो रहा है तो कितनी हीट रिजेक्ट कर रहा है वो आप फाइंड करोगे, ठीक है. समझ रहे हो या नहीं? यस सर. मतलब ये है ना, आपको टेबल गिवन होगी, जो एप्लियंस रूम के अंदर लगा है उसका या टेबल गिवन होगा या आप ऑनलाइन सर्च कर लोगे कि इसकी वाट्स में इतनी एनर्जी कंजम्पशन है और यूजेज फैक्टर इसका कितना है, पूरे मतलब कितना यूज कर रहे हो, 1 घंटे के लिए यूज कर रहे हो, 2 लगे हैं उसमें से 1 यूज कर रहे हो तो यूजेज फैक्टर निकाल लोगे. CLF फैक्टर आप उसका इस टेबल से फाइंड कर लोगे. तो उस पूरे टाइम के अंदर जब यूज हो रहा था तो कितनी हीट रिजेक्ट करेगी वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है. समझ रहे हो या नहीं? यस सर. हेलो सर टेबल से देखना है बस, सही है सर, क्लियर है. हाँ, टेबल से आप लोगों ने देखना है, ठीक है. अच्छा, द फोर्थ टर्म्स that is responsible for the internal cooling load is the cooling load due to stored food items, ठीक है. आप कमरे के अंदर आपने कोई फूड आइटम्स रखा हुआ है, ठीक है, उसका कितना लोड आएगा वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ये एक्चुअली कूलिंग लोड ऑफ द जो वो होते हैं ना, कोल्ड स्टोरेजेस होते हैं, इसमें आप खुराक वगैरह रखते हैं या ड्रिंक्स रखते हैं या फूड आइटम्स रखते हैं, तो उसमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. लेट से आप किसी कमरे के अंदर आप लोगों ने कोई फूड आइटम रखा हुआ है, ठीक है, लेट से बनानास रखे हैं या एप्पल्स रखे हैं या कोई और जो रखे हैं, ठीक है, फ्रूट्स हैं. तो हर फ्रूट आइटम्स की अपनी जो है हीट रिजेक्शन होती है. कुछ फूड आइटम्स जो है वो रिस्पायर करते हैं, ठीक है, रिस्पायरेशन प्रोसेस होता है उसमें. तो रिस्पायरेशन के दौरान भी उसमें जो एनर्जी रिजेक्ट वो करते हैं वो आप लोगों ने फाइंड करनी होगी, ठीक है. इसके अलावा
जब आप बाहर से फूड आइटम्स लाते हैं और रूम के अंदर रखते हैं तो उस फूड आइटम्स की टेम्परेचर और रूम के अंदर टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो वो डिफरेंस आप लोगों ने फाइंड करना होगा। लेट से आप फूड का टेम्परेचर है, लेट से एप्पल्स आप ला रहे हैं और बाहर से ला रहे हैं, उस वक्त उसकी टेम्परेचर है 40 डिग्री सी, और रूम के अंदर आपने रख दिया, वो रूम की टेम्परेचर है ईयर की वो है 30 डिग्री सी। तो 40 डिग्री सी और 30 डिग्री सी के टेम्परेचर में डिफरेंट है, तो हीट ट्रांसफर होगी, ठीक है, और अल्टीमेटली वो हीट रिजेक्ट करेगी और वो हीट ऐड होगी रूम के ईयर को के अंदर, ठीक है, और उसका लोड आएगा इक्विपमेंट के ऊपर। एक तो ये लोड है। दूसरा, अगर आप उसको किसी खास टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं स्टोरेज के अंदर, तो वो टेम्परेचर भी डिपेंड करता है कि वो टेम्परेचर कौन सा है। तो उसमें जो इनिशियल टेम्परेचर है वो और जिस टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं वो, उसके बीच फूड आइटम की जो स्पेसिफिक हीट है वो कितनी है, तो स्पेसिफिक हीट के साथ उसकी वो टेम्परेचर डिफरेंस मल्टीप्लाई करके उसका जो लोड आएगा स्टोरेज जो स्पेस है उसके अंदर जो उसका लोड आएगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। राइट सर, समझ रहे हो ना? यस सर। ये आप देख सकते हैं, जो एप्पल्स है ना उसको अगर 0 डिग्री सी पर आप स्टोर करना चाहते हैं ना, तो उसकी जो हीटिंग लोड आएगी जूल पर केजी ड्यूरिंग द 24 आवर्स टाइम, 24 घंटों के दौरान, वो होगा 312 टू अप टू 1560 वाट जूल पर केजी। 1 केजी से इतनी हीट आप रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरह जो कैबेज है उसका है 1248। इसी तरह जो कैरेट्स अगर आप रखते हैं 24 घंटों के दौरान और उसको आप स्टोर करते हैं 0 डिग्री सी के ऊपर, तो उससे जो हीट आप निकालेंगे वो निकालेंगे 2183 जॉल पर केजी, ठीक है। इसी तरह 4.4 डिग्री सी पर वो मजीद आप ज्यादा उससे निकालेंगे। 15.6 डिग्री सी पर आप स्टोर कर रहे हो तो उससे ज्यादा हीट निकालेंगे। तो हर फूड आइटम के लिए रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ है। तो स्टोरेज टैंक जो होते हैं ना, जिसके अंदर जो स्टोरेज वो होते हैं, उसमें अगर आप रखते हैं किसी खास टेम्परेचर पर, क्योंकि फूड को आपने प्रिजर्व करना होता है, तो खास टेम्परेचर पर आप स्टोर करते हैं तो उसकी लाइफ जो है उस स्टोरेज टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो हर स्टोरेज टेम्परेचर पर उस फूड आइटम से आप मुख्तलिफ हीट आप उससे निकालेंगे, ठीक है। तो वो इस टेबल के अंदर गिवन है, ठीक है। यस सर। अच्छा, नो एस्टिमेशन ऑफ द एक्सटर्नल कूलिंग लोड। क्या सोर्सेज है, एक्सटर्नल सोर्सेज क्या है, आप बता दें मुझे। सर सन रेज वगैरह सर, सोलर रेडिएशंस। हाँ, और सर कोई क्रैश वगैरह और क्या है सर, बिल्डिंग में क्रैक वगैरह सर? इसके अलावा सन रेज रेडिएशन, इसके अलावा conduction due to the temperature difference between the external wall surface and internal wall surface। इसके अलावा क्या सोर्सेज है? इनफिल्ट्रेशन एक्सटर्नल सोर्स है या नहीं? यस सर। यस सर। इनफिल्ट्रेशन का क्या मतलब है? व्हाट इज इनफिल्ट्रेशन? कोई स्टूडेंट बता दे, व्हाट इज इनफिल्ट्रेशन? हेलो फहद, व्हाट इज इनफिल्ट्रेशन? आई थिंक सर, मेरे ख्याल से सर इन्फिल्ट्रेशन का ये मतलब है सर कि जो बाहर से कुछ सर ड्यू टू द डिफरेंस या सर क्रैक्स की वजह से जो बिल्डिंग के अंदर है उसके सर जो बाहर से जो भी एयर पार्टिकल या सर ये ट्रांसफर सर एनर्जी ट्रांसफर होती है ना सर, तो उसको हम इन्फिल्ट्रेशन कह सकते हैं। It's actually the air leakage from the room, sorry, from outside to the room। एक होती है वेंटिलेशन जिसको इंटेंशनली आप लोग करते हैं, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग द इनडोर एयर क्वालिटी, ठीक है। उसको मेंटेन करने के लिए आप वेंटिलेशन करते हो इंटेंशनली। तो जब वेंटिलेटेड एयर आती है रूम के अंदर या जो भी एयर बाहर से आती है, वो एयर रूम के अंदर जो मौजूद एयर होती है वो उस प्रॉपर्टी की एयर नहीं होती, उसकी प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ होती है।
तो जब बाहर से ईयर आएगी वो अनट्रीटेड ईयर होगी, उसको आपने रूम के ईयर के प्रॉपर्टीज पर लाने के लिए उसे आप हीट रिजेक्ट करेंगे। तो इनफिल्ट्रेशन इज द अनइंटेंशनल एंट्री ऑफ द ईयर फ्रॉम आउटसाइड टू द रूम, ठीक है ना। और वो क्रैक्स के जरिए या होल्स के जरिए, या जब आप खिड़की खोलते हैं या रोशनदान आप लोगों ने खुला छोड़ा है या दरवाजा आप खोलते हैं, तो ईयर ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर उन क्रैक से या थ्रू द पैसेज पाथवेज जब आप खोलते हैं खिड़की दरवाजा, उसके थ्रू अंदर आती है, ईयर लीक होती है, तो उससे जो लोड आता है वो एक्चुअली आपका कूलिंग लोड का हिस्सा बनता है। ये सना रशीद, ये कौन है? आउटसाइड यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये कोई स्टूडेंट है या? अच्छा, सो इससे अगर कोई क्वेश्चन है रिलेवेंट तो आप पूछ ले। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। कूलिंग हीट ट्रांसफर थ्रू फेनेस्ट्रेशन, जो ग्लासेस वगैरह के जरिए जो ट्रांसपेरेंट सरफेसेस होते हैं उनके थ्रू जो सोलर रेडिएशन से हीट ट्रांसफर होती है और मिलती है ईयर को, उससे जो लोड आता है उसको फेनेस्ट्रेशन लोड कहा जाता है, ठीक है। तो इससे डायरेक्टली सेंसिबल लोड मिलता है रूम को, ठीक है ना। तो जितना अनशेडेड एरिया होता है रूम का वो मल्टीप्लाई बाय द सेंसिबल हीट गेन फैक्टर, ठीक है, क्योंकि सेंसिबल हीट गेन फैक्टर इज द लोड पर स्क्वायर मीटर एरिया। तो एरिया अनशेडेड एरिया उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो वाट्स पर मीटर स्क्वायर, जो नीचे मीटर स्क्वायर आएगा वो इस एरिया के साथ खत्म हो जाएगा। अगर ग्लास के ऊपर कोई शेडिंग कोफिशिएंट है तो शेडिंग कोफिशिएंट की जो वैल्यू है उससे जो हीट ट्रांसफर इफेक्ट होगी परसेंटेज वाइज वो भी आप मल्टीप्लाई कर दोगे। इसी तरह कूलिंग लोड फैक्टर उसका टेबल फॉर्म में गिवन होगा, तो वो मल्टीप्लाई करके आप पूरी की पूरी जो फेनेस्ट्रेशन लोड आएगी ईयर के ऊपर वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस के अंदर। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप पूछ ले। सर ये अनशेडेड एरिया सर एक्सपोज एरिया सर क्या मतलब है सर इसका? अनशेडेड एरिया समझने के लिए लास्ट टाइम जो हमने ओवरहैंग्स डिस्कस किए थे ना, उससे आपको समझ आ जाएगी। एंड फॉर दैट आई विल ओपन द प्रीवियस लेक्चर और उससे मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा कि शेड एरिया का क्या मतलब है। अच्छा, सो लेट मी प्रेजेंट दैट लेक्चर और उसमें देखते हैं फिर। ये दिस इज ओवरहैंग और ये पूरी की पूरी वो ग्लास है, ठीक है। तो ग्लास का जब आप ओवरहैंग यूज करते हैं ना तो पूरी की पूरी ग्लास के ऊपर सनरेज नहीं गिरती, तो जो एरिया उसको एक्सपोज होता है वो अनशेडेड एरिया बन जाता है उसका। तो इसका जो अनशेडेड एरिया है ना दैट इज x मल्टीप्लाई बाय y। एक्चुअल ग्लास की जो एरिया है दैट इज h मल्टीप्लाई बाय w। तो जो सन रेज को एक्सपोज है दैट इज ओनली दिस पोर्शन स्मॉल x मल्टीप्लाई बाय y। सो दिस इज दैट अनशेडेड एरिया। ये देख ले, ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। ओके सर, सही है, समझ आ गई। और किसी का क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले। सर ये इनफिल्ट्रेशन फिर अलग से होगी या इसी में फेनेस्ट्रेशन में इंक्लूडेड है? नहीं नहीं, इनफिल्ट्रेशन अलग है, वो तो मैं कंबाइन एक्सटर्नल सोर्सेज की बात कर रहा था ना। इनफिल्ट्रेशन का अभी इसके ऑनवर्ड एक लेक्चर है उसमें डिस्कशन होगी। राइट सर, ठीक है। अच्छा, इससे कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ ले। क्वेश्चन नहीं है? नहीं है सर, ठीक है। अच्छा ठीक है, सो लेट मी प्रेजेंट द टुडे लेक्चर स्लाइड्स और वो देखते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसका है कंटिन्यूअस फेनेस्ट्रेशन लोड। अगर ग्लास के दो साइड्स पर अगर उस पर सन रेज नहीं गिर रही लेकिन एक साइड सराउंडिंग ईयर को एक्सपोज है और उस पर सन रेज नहीं गिर रही और दूसरा एक्सपोज है टू द इंटरनल ईयर,
तो इंटरनल ईयर का टेम्परेचर गर्मियों में एक्सटर्नल ईयर के टेम्परेचर की निस्बत उसका टेम्परेचर कम होता है। तो कंडक्शन मोड से जो हीट ट्रांसफर होगी, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस मिल जाएगा अक्रॉस द ग्लास सरफेसेस, एक्सटीरियर सरफेस पर ईयर की टेम्परेचर हाई होगी, इंटीरियर सरफेस पर ईयर की टेम्परेचर कम होगी, तो कंडक्शन मोड से हीट ट्रांसफर होगी और वो मिलेगी रूम के ईयर को, तो वो लोड का हिस्सा बन जाएगी। अगर डायरेक्टली सनलिट ग्लास है जिसके ऊपर सन रेज गिर रही है, तो फिर कंडक्शन मोड से हीट ट्रांसफर नहीं होगी ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सराउंडिंग ईयर एंड द इंटरनल ईयर। उससे कंडक्शन मोड से हीट ट्रांसफर नहीं होगी, क्योंकि जब ग्लास के ऊपर सन रेज गिरे तो वो कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगी और उस एब्जॉर्ब रेडिएशन से बजाते खुद ग्लास का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और वो इतना बढ़ जाएगा कि उस ग्लास का जो मटेरियल का जो टेम्परेचर होगा वो सराउंडिंग ईयर की निस्बत उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा। तो जो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर डिफरेंस से कंडक्ट होना था हीट बिटवीन द एक्सटर्नल ईयर एंड द इंटरनल ईयर, उस मोड से हीट ट्रांसफर नहीं होगी, बल्कि कन्वेक्शन और रेडिएशन मोड से हीट ट्रांसफर होगी। तो उस केस में ये कंडक्शन मोड से हीट ट्रांसफर जो है ये जीरो हो जाएगी, और इसको भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने रिकॉर्डिंग देखी है तो उसमें हमने इसकी डिस्कशन की थी। समझ रहे हो या नहीं? ठीक है सर। इसकी समझ आई है आपको? यस सर। कि जब इस पर सन रेज गिरेगी तो कंडक्शन मोड से हीट ट्रांसफर क्यों हम जीरो? फहद आप बता दो जरा, या अगर कोई और बताना चाहे तो वो बता। सर डायरेक्ट आ रही है सर। हाँ बता दो सर। जो कंडक्टिव है सर वो हमारे पास तब होगी जब हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस होगा, और वो सिर्फ गर्मियों में एप्लीकेबल है बिटवीन द सराउंडिंग ईयर एंड द इनसाइड ईयर। जी सर, तो वो सूरत तो में सिर्फ कंडक्टिव होगी। लेकिन जो सोलर रेडिएशंस हैं हाँ, तो जब उस पर सन रेज गिरेगी, तो सन रेज जब गिरेगी तो फिर क्यों कंडक्शन बिटवीन द एक्सटर्नल ईयर एंड द इंटरनल ईयर टेम्परेचर डिफरेंस है, क्यों कंडक्शन मोड से हीट ट्रांसफर नहीं होगा? क्योंकि वो थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा इस वजह से। नहीं, उसमें ट्रिक ये है ना कि जब रेडिएशन ग्लास एब्जॉर्ब करेगी ना तो उसका टेम्परेचर भी उससे बढ़ता है, तो वो इतना बढ़ जाएगा कि सराउंडिंग ईयर की निस्बत ग्लास की टेम्परेचर बढ़ जाएगी। समझ रहे हो ना? यस सर, ये भी तो बनिस्बत इसके कि जो सराउंडिंग ईयर और इंटरनल ईयर के बीच टेम्परेचर डिफरेंस था वो अब बन जाएगा ग्लास मटेरियल और इंटरनल ईयर के बीच टेम्परेचर डिफरेंस, वो इफेक्टिव हो जाएगी। ठीक है ना? और ग्लास मटेरियल से कुछ हीट कंडक्ट होगी सराउंडिंग ईयर को भी, क्योंकि ग्लास मटेरियल का टेम्परेचर बनिस्बत एक्सटर्नल ईयर की टेम्परेचर वो बढ़ जाएगा। बिल्कुल सर। सर फिर कन्वेक्शन हो गया अगर ग्लास टेम्परेचर, ग्लास मटेरियल और इनसाइड रूम का वो रिलेशन ले तो हाँ, वो कन्वेक्शन और रेडिएशन मोड इफेक्टिव हो जाएंगे, उसके थ्रू वो हीट ट्रांसफर होगी। और कंडक्शन से भी होगी अगर ग्लास मटेरियल हाई टेम्परेचर पर है और उसके साथ ईयर इन कांटेक्ट जो आ रही है वो कम टेम्परेचर पर है, तो कंडक्शन मोड से भी हीट ट्रांसफर होगी। सही है सर, ओके। अच्छा, वी आर लेफ्ट विद 3 स्लाइड्स, तो वो कवर करते हैं क्योंकि मैं बाहर बैठा हूँ गाड़ी में। ठीक है, तो नमाज का वक्फा जब लेक्चर खत्म हो जाएगा तो फिर आप नमाज पढ़ लोगे। ठीक है, अच्छा, दिस इज द CLF वैल्यूज। सोलर टाइम है 6 घंटों के लिए बैठे हैं, और डायरेक्शन ऑफ द सनलाइट विंडो इज फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन, तो उसके लिए CLF की वैल्यू ये आप लेंगे। ठीक है, 7 घंटों के लिए ये और कम हो जाएगी। इस तरह है मुख्तलिफ ओरिएंटेशन पर CLF वैल्यू जो आएंगे जो इस इक्वेशन में गिवन है। ठीक है, ये चेंज होती जाएगी, तो जिस ओरिएंटेशन पर गिवन है वो CLF वैल्यूज आप ले लेंगे। ठीक है, और इसका जो लेटीट्यूड जिस पर ये गिवन है, आई थिंक दैट इज 32 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, तो मुख्तलिफ लेटीट्यूड पर इसकी वैल्यूज मुख्तलिफ बन जाएगी। तो जिस लेटीट्यूड का मैं आपको दूंगा तो उसी निस्बत को टेबल भी बताऊंगा, टेबल आप लोग यूज करें। ठीक है, सही है ना? ठीक है। मतलब अगर ग्लास लगा हुआ है ना ईस्ट डायरेक्शन में या ईस्ट डायरेक्शन या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, और सोलर टाइम है 6 घंटे का टाइम है, तो उस केस में जो CLF वैल्यू आप लेंगे उस ओरिएंटेशन के लिए वो वैल्यू आप पिक कर लोगे। ठीक है,
यस सर, क्लियर है सर। ठीक है सर। अच्छा, नो जिसकी आप बात कर रहे थे कि इनफिल्ट्रेशन, दिस इज अगेन द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ द कूलिंग लोड, और इनफिल्ट्रेशन का जो लोड आएगा ये वैल्यू है उसकी, ठीक है। सेंसिबल लोड की ये वैल्यू है, और ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि इसमें ये जो सीपीएम है ना, दिस इज ह्यूमिड स्पेसिफिक हीट, और इसकी वैल्यू है 1.025। ये हमने साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस जब हम डिस्कस कर रहे थे या साइकोमेट्री हम डिस्कस कर रहे थे, तो ये हमने इंथैल्पी से ये वैल्यू इसकी निकाली हुई थी। और ये लास्ट टाइम मैंने पेंट फाइल में डिस्कस किया था कि जो टोटल इंथैल्पी है ईयर की, उसका कुछ पोर्शन सेंसिबल पार्ट पर मुश्तमिल है, कुछ पोर्शन लेटेंट पार्ट पर मुश्तमिल है। तो उसको भी इनफिल्ट्रेटेड ईयर के अंदर जो लोड आएगा उसको भी दो हिस्सों में डिवाइड किया है, जो है तकसीम किया है, सेंसिबल पार्ट और लेटेंट पार्ट। तो सेंसिबल पार्ट से जो लोड आता है वो कितना है, और लेटेंट पार्ट से जो लोड आता है वो कितना है, वो इक्वेशन फॉर्म में इस तरह से आ जाएगी। इसमें जो HFG की वैल्यू है दैट इज 2501, और CPM की वैल्यू है दैट इज 1.025। तो अगर आपसे मैं कह दूं कि रूम जो है थर्मल कंफर्ट लेवल पर है, तो थर्मल कंफर्ट लेवल जो होता है दैट इज 25 डिग्री सी टेम्परेचर और 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो जो TI है दैट इज इंटरनल ईयर टेम्परेचर, जो कंडीशन स्पेस का टेम्परेचर है, और सराउंडिंग ईयर की टेम्परेचर अगर मैं आपको दे दूं तो ये QS आप फिर इनफिल्ट्रेटेड ईयर का फाइंड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड के मैं आपको मास फ्लो रेट और एक्सटर्नल ईयर की टेम्परेचर दे दूं, और आपसे कह दूं कि ईयर जो रूम के अंदर है वो कंफर्ट लेवल पर है। समझ रहे हो ना? कंफर्ट लेवल का क्या मतलब है कि ईयर की जो टेम्परेचर है दैट इज 25 डिग्री सी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द ईयर इज 50%। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर आपको मिल जाए तो आप उसकी इंटरनल जो उसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओमेगा आई है वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। इंटरनल स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आपको गिवन होगी, मास फ्लो रेट ऑफ इनफिल्ट्रेटेड ईयर वो आपको गिवन होगी, ठीक है। और HFG की जो वैल्यू है इस इक्वेशन में दैट इज 2501। सर ये थर्मल कंफर्ट हमारे पास 25 समझ रहे हो या नहीं? हाँ, दैट इज 25 डिग्री सी टेम्परेचर एंड 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये आप लोग अपने साथ लिख दे, ऐसा ना हो कि मैं आपको प्रॉब्लम दे दूं और मैं आपसे कहूं कि द ईयर इज ए थर्मल कंफर्ट लेवल, और फिर आपको पता ना हो कि थर्मल कंफर्ट लेवल से क्या मुराद है। तो इसका मतलब ये होगा कि ईयर की टेम्परेचर होगी 25 डिग्री सी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी 50%, ठीक है। तो ये मतलब थर्मल कंफर्ट। जी जी सर, तो फिर ये जो हमारे पास है जो एसीज वगैरह होते हैं सर, इनमें सर ये अप टू 18 हाँ। 18 और 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक सर इन्होंने दिया होता है कि हम उसको टेम्परेचर सेट हाँ। कर सकते हैं। तो सर ये फिर 25 हाँ। से क्यों नहीं, मतलब क्योंकि 25 पे थर्मल कंफर्ट आप कह रहे हैं ना कि उसको अचीव हो जाता है। हाँ वो है, लेकिन कुछ लोग की जाती जो वो होती है ना पसंद या ना पसंद, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। Otherwise, if you maintain 25 degree C inside the room and if the relative humidity is 50%, then at that situation, the heat rejected by the body will be actually taken up by the ear. तो जितनी हीट रिजेक्ट होनी है वो जो है इस कंडीशन के ऊपर वो फैसिलिटेट होगी कि वो आपकी बॉडी से रिजेक्ट हो जाए। बाकी आप 18 डिग्री सी पर आप चलाएंगे तो आपका जो कंजम्पशन आएगा, कंप्रेसर ज्यादा टाइम के लिए चलेगा और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन आपकी ज्यादा होगी, फिर भी आपका थर्मल कंफर्ट अचीव होगा, लेकिन फजूल में आपसे एनर्जी जो है वो ज़ाया होती जाएगी इन टर्म्स ऑफ, और आपका जो बिल आएगा वो भी ज़्यादा आएगा। तो यही वजह है कि जो इश्तिहारात वगैरह में आप देखते हैं कि आप एसी को 25 डिग्री सी पर चलाएं, तो वो जब 25 डिग्री सी ईयर की टेम्परेचर मेंटेन होगी, जो थर्मोस्टेट होगा वो इनकमिंग ईयर की टेम्परेचर जब वो 25 सेंस करेगा तो सिग्नल मिलेगी कंप्रेसर को और कंप्रेसर ऑफ होगा। तो इस तरह से जो है आपकी कंप्रेसर की जो रनिंग टाइम है वो कम होगी, ठीक है ना। यस सर। सर बाकी जो कंफर्ट है वो में भी सर ये 18 पे चला रहे होते हैं, इनको चाहिए 25 26 पे चलाया करें फिर। हाँ एग्जैक्टली उसको उनको जो है 25 डिग्री सी पर चलाना चाहिए। थैंक यू सर।
अच्छा, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज अच्छा, लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो जो मास फ्लो रेट ऑफ द इनफिल्ट्रेटेड ईयर है उसकी हमने दो मेथड डिस्कस किए थे, ठीक है। एक था ईयर चेंज मेथड एंड द सेकंड वन वाज क्रैक मेथड, ठीक है। अच्छा, उसकी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इफ यू आर इंटरेस्टेड तो सबसे पहले मैं वो प्रीवियस लेक्चर आपके साथ थोड़ा सा शेयर करता हूं ताकि वो आपको मैं बता सकूं कि ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है। क्योंकि इनफिल्ट्रेशन लोड फाइंड करने के लिए जो टीडियस टास्क है या जो डिफिकल्ट टास्क है, दैट इज द अमाउंट ऑफ द ईयर और द मास फ्लो रेट ऑफ द ईयर इनफिल्ट्रेटिंग एक्चुअली टू द रूम, वो फाइंड करना वो बहुत डिफिकल्ट है। तो उसके दो तरीके हैं, उनसे रिलेवेंट जो ईयर चेंज मेथड है जो नॉर्मली ज्यादातर यूज होता है, उसकी रिलेवेंट एक वीडियो और उससे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मैंने इन स्लाइड्स में डाली हुई है, तो वो आप काइंडली उसको फिर देख ले, ठीक है। अच्छा, तो लेट मी शेयर द प्रीवियस लेक्चर और अच्छा, ये दोबारा वही शेयर हो गया या? जी दोबारा वही शेयर होगी सर। अच्छा, एक मिनट, वो मैं प्रीवियस शेयर करता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये नया शेयर हो गया। जी सर हो गए। अच्छा, ये देख लेना, द अनकंट्रोल्ड एंट्री ऑफ अनट्रीटेड आउटडोर एयर डायरेक्टली इनटू द कंडीशन स्पेस इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन। अब इनफिल्ट्रेशन रेट फाइंड करने के लिए ACH एक मेथड है जिसको कहा जाता है ईयर चेंजेस पर आवर। ईयर चेंज पर आवर का क्या मतलब है? 1 ईयर चेंज पर आवर का मतलब ये है कि इतनी ईयर इनफिल्ट्रेट हो जाए कि रूम के अंदर जो एग्जिस्टिंग ईयर है वो रिप्लेस हो जाए न्यू ईयर से, तो हम कहते हैं कि 1 ACH ईयर चेंज हो गया है, ठीक है ना, पर आवर। 1 घंटे में अगर पूरी की पूरी ईयर रूम से जो एग्जिस्टिंग ईयर है वो निकाल ले और उसको फ्रेश ईयर से रिप्लेस कर दे तो इसको कहा जाता है 1 ACH, ठीक है। समझ रहे हो या नहीं? वन ACH का क्या मतलब है? मैंने क्या बताया पहले वो आप सुन ले। आप बता रहे क्या आपने सुना है? व्हाट इज 1 ACH? सर इसका मतलब ये है कि अगर रूम के अंदर एग्जिस्टिंग एयर हो और उसको हम रिप्लेस करें फ्रेश एयर से 1 घंटे में, तो हाँ उसको 1 ACH कहेंगे सर। जी, एग्जैक्टली यही मतलब है। और 1 ACH विल बी द फंक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ईयर। आपको वॉल्यूम पता होगी कि इस रूम की वॉल्यूम क्या है, लेंथ पता होगा, विड्थ उसकी पता होगी और हाइट उसका पता होगा। तो जितनी वॉल्यूम है कि अगर वो पूरी की पूरी वॉल्यूम रिप्लेस आप कर दे न्यू ईयर से, तो वो वॉल्यूम पर आवर जो आएगा, वॉल्यूम फ्लो रेट एक्चुअली बन जाएगा उसका। तो वो 1 घंटे में अगर पूरी ईयर को रिप्लेस कर दे फ्रेश ईयर से और उस वॉल्यूम को भर दे फ्रेश ईयर, तो वो बन जाती है 1 ACH, ठीक है ना। सर ये लेकिन इनफिल्ट्रेशन में तो एक्सचेंज तो नहीं होता ना? तो हर बिल्डिंग के लिए मुख्तलिफ बिल्डिंग की मुख्तलिफ स्पेसिफिकेशन होती है ना। एक को कहा जाता है कि लूज फिटेड बिल्डिंग, एक होता है टाइट फिटेड बिल्डिंग। तो हर बिल्डिंग के लिए ACH गिवन होता है कि लूज बिल्डिंग के अंदर AC जो होगा वो 0.1 ACH के बराबर होगा और टाइट फिटेड बिल्डिंग के लिए 0.05 ACH के बराबर होगा। उसका मतलब ये है कि टाइट फिटेड बिल्डिंग में 0.05 ACH के हिसाब से 1 घंटे के अंदर 0.05 वॉल्यूम रिप्लेस होगी अनवांटेड लीक्ड ईयर से, ठीक है ना। तो उस हिसाब से उस बिल्डिंग के लिए आप इनफिल्ट्रेशन लोड पर फाइंड कर सकते हैं। सही सर, राइट सर। अच्छा, इसकी वीडियो है, अगर आप चाहते हैं तो वो मैं प्ले करता हूँ, मजीद ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर देट आई विल अगेन शेयर टुडे लेक्चर और उसमें वो वीडियो अगर प्ले कर दे, 4 मिनट की वीडियो है, तो उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सो
प्ले कर रहा हूँ, इसको आप सुने, ठीक है? Welcome to the VRF Wizard. I'm going to show you how to calculate. ये आप सुन रहे हो या नहीं? ये आप सुन रहे थे या नहीं? सुन रहे हैं सर। अच्छा अच्छा ठीक है, ये मैं प्ले करता हूँ, ठीक है? Welcome to the VRF Wizard. I'm going to show you how to calculate. सुन रहे हो इसको? यस सर, आवाज आ रही है। यस सर, सुन रहे हैं। अच्छा ठीक है, सुन ले इसको। Welcome to the VRF Wizard. I'm going to show you how to calculate air changes per hour and how to figure out the air changes per hour based on a given CFM. So you'll need to know how to do air changes per hour. If your code requires this for maybe bathrooms or definitely any hospital is going to have air change requirements for operating rooms and a lot of other rooms. So quickly here, air changes per hour is the number of times that the total air volume in the room or the space is completely removed and replaced in an hour. So how many air changes in an hour? So that would be one air change if I took out all the air out of the room in an hour. And of course, when you take out air, it gets replaced with air. So if I take all the air in the room out of the room within 60 minutes, that's one air change in an hour. Now, if I want to calculate that, I would start by calculating volume of the room. That would be step one, calculate your volume. In this case, we got a 15 by 12 foot room by 9 foot high ceiling. So you want to go to the ceiling, not to the deck or the area below, only the space on which you're going to pull out the air. So in this case, this works out to be 1,620 cubic feet. So then step two would be to, if we assume that we're going to do 4 air changes, so we're going to do this 4 times in an hour. We're going to remove the air out of this room equivalent to 4 times its volume within an hour. So there's 2 air changes, 1,620 cubic feet for each time we exchange the air out, because that's the volume of the room. The volume of the room is 1,620 cubic feet. So every time we take out that volume in an hour, that's considered 1 air change. So if I'm doing 4 air changes, I'm going to remove that volume 4 times in 1 hour. So that's 4 air changes an hour. So step 2 then is to take your 4 air changes multiplied by the cubic feet of the room to get the total cubic feet of air that we need to remove in the hour. 4 air changes an hour is equivalent to 6,480 cubic feet for this volume of room. That's 4 times the volume. Step 3, determine the CFM, which is cubic feet per minute. So everything we've done so far has been per hour. Air changes in an hour. Now we got to get that down to the minute. So to do that, of course, we're going to divide by 60. So the calculation's right here. CFM, that's equivalent to 4 air changes an hour. Take the air changes times the volume, which we already did, and then all you do is divide it by 60. So here's our volume,
That's for 4 times the volume of the room because we're doing 4 air changes, but that's an hour. So we can divide by 60 minutes in an hour into order to get our CFM. In this case, it's 108 CFM, which is equivalent to 4 air changes an hour for this size room. Now, if we had to work backwards and we knew the CFM of the room, but we didn't know how many air changes it was, we can determine how many air changes in an hour a certain CFM is worth based on this formula here. So working with the same numbers, we take the 108 CFM, multiply it by 60 minutes in an hour, and divide it by the volume will tell us the air changes. And that's the formula for working backwards if you know the CFM of the room and you're trying to determine whether or not it's enough air changes per hour. So you can work it either way, forwards or backwards, the formula works the same. So hope you learned something, and we hope you subscribe. अच्छा, इसलिए आप लोगों ने हेलो यस सर। क्या समझे आप इससे? सर इसकी पॉइंट 2 समझ नहीं आया सर। सबसे पहले तो इसने क्या है कैलकुलेट वॉल्यूम, और फिर जो पॉइंट 2 का है कि हाँ। 4 को मल्टीप्लाई किया सर, वो उसकी समझ नहीं आई क्योंकि सर वीडियो शो नहीं हो रही थी। वो उसने कंसीडर किया है ना कि अगर 4 ईयर चेंजेस हो तो 4 ईयर चेंज, 1 ईयर चेंज का मतलब ये है कि एक पूरी वॉल्यूम जो है 1 घंटे में रिप्लेस हो गई है, तो 4 ईयर चेंजेस आप उसके साथ 4 मल्टीप्लाई कर लोगे ना, तो उससे उसकी वैल्यू आ जाएगी कि मतलब वॉल्यूम पर आवर कितना टाइम लेता है, टोटल वॉल्यूम। सर 4 और 4 ईयर चेंज का क्या मतलब होगा कि 4 टाइम वो वॉल्यूम रिप्लेस हो गया है 1 घंटे के अंदर, ठीक है ना, या उसका वॉल्यूम फ्लो रेट आ जाएगा ईयर का, राइट ईयर की वॉल्यूम फ्लो रेट आ जाएगी ना, उस फ्लो रेट वॉल्यूम फ्लो रेट के साथ आप उसकी डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो एम डॉट है स्लाइड में जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप उससे कैलकुलेट कर दोगे। ये देख लेना, ये एम डॉट उससे आ जाएगा ना। ACH का क्या मतलब है? वॉल्यूम फ्लो रेट पर आवर, ये मतलब है ना। यस सर। आप ACH पहले बता दो क्या मतलब है, आप आपने वीडियो देख ली ना, उसका मतलब क्या है? सर वीडियो शो नहीं हो रही थी, सिर्फ वॉइस आ रही थी। अच्छा, तो आप मुझे बता देते ना। वो खैर है सर, वो हम देख लेते हैं, अभी वो स्लाइड्स में शेयर होगी सर, वहां से देख लेंगे। सर हम देख लेंगे वो उसमें समझ लग बस रही थी फिर सर आप वैसे वो उसको देखने से, वो सुनने से। ठीक है, सही है, आप फिर मुझे बता दे दोबारा, ठीक है, या आप खुद देख ले, उसमें वो पूरी वीडियोस भी गिवन है, वो कैलकुलेशन जो कर रहे हैं वो भी गिवन है, ठीक है। लेकिन 1 ACH का मतलब ये है कि पूरी की पूरी वॉल्यूम रूम का 1 घंटे में रिप्लेस होगी इनकमिंग सराउंडिंग ईयर से, थ्रू द लीक्स, थ्रू द ओपनिंग्स, इनसे वो फ्लो रेट उसकी इतनी होगी कि पूरी की पूरी ईयर 1 घंटे में रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। अगर 4 ACH का मतलब ये है कि ना, तो वो उसका मतलब है कि 4 टाइम द वॉल्यूम ऑफ द ईयर विल बी रिप्लेस्ड इन 1 आवर, ठीक है। सही सर। यस सर। ACH का मतलब ये कि पूरी वॉल्यूम ईयर का 1 घंटे में रिप्लेस होगा, तो अगर 4 ACH है तो इसका मतलब ये कि 4 टाइम जो है 4 दफा जो है वो पूरी की पूरी ईयर रिप्लेस होगी 1 घंटे के अंदर उस पर्टिकुलर रूम के लिए। तो वॉल्यूम फ्लो रेट आ जाएगा और उसकी डेंसिटी ईयर की अगर आपको पता चल जाए आपको साइकोमेट्रिक चार्ट से, तो आप उसकी मास फ्लो रेट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सही है सर, ठीक है सर, समझ आ गई। अच्छा, और ये हीट ट्रांसफर थ्रू द ओपेक सरफेसेस, ये आप लोगों ने HMT वगैरह में पढ़ा होगा कि ओवरऑल हीट ट्रांसफर
कोफिशिएंट होता है, उसमें एरिया इन्वॉल्व होती है और कूलिंग लोड टेम्परेचर डिफरेंस गिवन होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि कमरे के 4 दीवार है, एक दीवार के एक्सटीरियर सरफेस पर ये टेम्परेचर है, इंटीरियर पर ये टेम्परेचर है और इस वॉल की यू वैल्यू ये है, तो आपको जो लोड ट्रांसफर लोड आएगा ईयर के ऊपर हीट ट्रांसफर से, वो आपको कैलकुलेट करना फिर आता हो। ठीक है, मतलब मैं आपको डायमेंशन दे दूंगा रूम का कि इस रूम की हाइट इतनी है, इसकी विड्थ इतनी है और इसकी जो लेंथ है वो इतनी है, तो हर वॉल की एरिया आप उससे फाइंड कर सकते हैं, रूफ की फाइंड कर सकते हैं, फ्लोर की फाइंड कर सकते हैं अगर ये सेकंड स्टोरी पर ये रूम अवेलेबल हो। ठीक है, तो हर बिल्डिंग के लिए, हर वॉल के लिए टेम्परेचर डिफरेंस अगर मैं आपको दे दूं तो ओपेक सरफेस से ही ट्रांसफर फाइंड करना आपको आना चाहिए। समझ रहे हो या नहीं? हेलो, यस सर। सर ये लास्ट वाले टर्म से का क्या मतलब है? CLTD कूलिंग लोड ये क्या है सर? ये हाँ, कूलिंग लोड टेम्परेचर डिफरेंस। ओके सर। CLTD का मतलब है कूलिंग लोड टेम्परेचर डिफरेंस, के कितना टेम्परेचर डिफरेंस है। मतलब एक दीवार है ना, रूम का एक दीवार होगा, उसका एक्सटीरियर सरफेस जो है किसी टेम्परेचर पर होगा और इंटीरियर सरफेस जो जिसके साथ इंटीरियर ईयर इन कांटेक्ट है वो किसी टेम्परेचर पर होगा। तो इससे जो हीट कंडक्ट होगी या ओवरऑल हीट ट्रांसफर जो इससे कन्वेक्शन मोड से होगी, ठीक है, वो पूरा का पूरा यू में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अगर यू वैल्यू में आपको दे दूं और एरिया उसका आप फाइंड कर ले और टेम्परेचर डिफरेंस आपको गिवन हो, तो उससे जो उस ओपेक दीवार से जो हीट ट्रांसफर होगी वो आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सही है सर, समझ रहे हो? क्लियर है सर। यस। अच्छा, और मिसलिनियस लोड्स में जो चीज़ें अभी तक हमने डिस्कस कर दी, और वो मतलब लेट से एयर कंडीशनिंग के अंदर जो फैन यूज़ होता है या सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग में जो एयर हैंडलिंग यूनिट के अंदर फैन यूज़ होता है, उससे भी हीट जो है वो एड अप हो सकती है इनकमिंग एयर के साथ। इसी तरह जो सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग में जो ट्यूब्स होते हैं जिसमें एयर फ्लो करती है, उन ट्यूब्स को भी एक्सटर्नल एयर से हीट मिल सकती है, तो वो मिसलिनियस लोड्स में जो है वो एड अप हो जाएगी। तो अगर इस तरह की कोई और सोर्सेज भी है लोड के, वो भी आप ऐड करोगे और उसके बाद भी जब ये पूरे लोड आप कैलकुलेट कर दोगे तो उसके साथ एक सेफ्टी फैक्टर के लिए आप कुछ एक्स्ट्रा लोड भी आप ऐड करेंगे, ताकि आप जो डिज़ाइन कैपेसिटी आपके पास आएगी वो डिज़ाइन कैपेसिटी आपके उस पूरे रूम के लोड को जो है कवर कर सके। ऐसा ना हो कि आप थोड़ी बहुत लोड कैलकुलेशन में गलती कर ले और उस बेसिस पर सेलेक्ट कर ले और फिर वो आपको थर्मल कंफर्ट प्रोवाइड ना कर सके। ठीक है, सही है ना? यस सर। अच्छा, इससे इस तरह का भी आपको लोड कैलकुलेशन में क्वेश्चन आ सकता है ना, कि जो अभी मुख्तलिफ सोर्सेज हमने पढ़े हैं उसमें सेंसिबल लोड भी था, लेटेंट लोड भी था। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरे लोड का सेंसिबल हीट फैक्टर आप फाइंड कर लो, तो उसमें सेंसिबल लोड सारे के सारे आप ऐड कर लोगे और टोटल लोड ऐड कर लोगे, तो सेंसिबल लोड को आप टोटल लोड से जब डिवाइड कर लोगे तो सेंसिबल हीट फैक्टर उसका आपके पास फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, ये हमने ऑलरेडी साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस में पढ़ी है। ठीक है ना? तो आप सेंसिबल लोड को सारे के सारे को ऐड कर लोगे, लेटेंट लोड को ऐड कर लोगे और फिर कंबाइन करके सेंसिबल को डिवाइड कर लोगे कंबाइन लोड से, तो उससे आपके पास सेंसिबल हीट फैक्टर उसका फाइंड हो जाएगा। ठीक है, राइट सर। सर सारे के सारे सेंसिबल लोड को और कूलिंग लोड सबको ऐड करके सर डिवाइड कंबाइंड लोड से करना है। हाँ, वो सेंसिबल हीट फैक्टर आप थोड़ा सा देख ले साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस में, उसमें ये डिस्कस हुआ है। ठीक है, ठीक है ना? जी ठीक है सर। अच्छा, and the coming this is relevant with how the infiltration actually occur। 3 सोर्सेज है, एक है डेंसिटी डिफरेंस या स्टेक इफेक्ट जिसको कहा जाता है। जिस तरह चिमनी में जो पावर प्लांट में जो कंबशन होती है, के जो एग्जॉस्ट गैसेस चिमनी के थ्रू बाहर जाते हैं वो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से जाते हैं। एग्जैक्टली इनफिल्ट्रेशन भी डेंसिटी डिफरेंस की वजह से होती है। ठीक है, रूम के अंदर एयर अमूमन
गर्मियों में वो ठंडी होती है, बाहर ईयर गर्म होती है। तो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से ठंडी ईयर नीचे आएगी, गर्म ईयर ऊपर जाएगी। तो अगर नीचे कुछ बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के अंदर सुराख है तो उससे ठंडी ईयर बाहर चली जाएगी, और अगर ऊपर सुराख वगैरह है या ओपनिंग है रोशनदान के थ्रू गर्म ईयर आएगी तो इनफिल्ट्रेशन हो जाएगी। ठीक है। दूसरा इफेक्ट इसमें ये यूज हुआ है कि विंड इफेक्ट। विंड इफेक्ट का ये मतलब है कि जब हवा चलती है ना तो बिल्डिंग के जिस दीवार के साथ वो टकराती है उस साइड हवा की वजह से एक पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई होता है। तो उस पॉजिटिव प्रेशर से कुछ ईयर रूम के अंदर दाखिल हो जाती है, एक्सटर्नल ईयर, और जिस दीवार के ऊपर मतलब दीवार से टकरा के दूसरी दीवार से उस तरफ जाती है तो वो उस दूसरे साइड पर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करती है। ठीक है। तो उस नेगेटिव प्रेशर की वजह से जो ईयर है वो रूम से बाहर जाती है। ठीक है। तो एक तरफ से इंटर होती है, दूसरी तरफ से बाहर जाती है। तो ये इसको कहा जाता है विंड इफेक्ट। दूसरा होता है कि अगर आप लोगों ने रूम के अंदर कोई पंखा वगैरह लगाया है तो उससे भी प्रेशराइजेशन होती है, एयर प्रेशराइज होती है। ठीक है। और वो प्रेशराइज एयर लीक्स के थ्रू रूम से बाहर जाती है। ये पूरा का पूरा जो है इन स्लाइड्स में डिस्कस हुआ है, और ये मैंने ऑनलाइन जो है उससे कॉपी पेस्ट किया हुआ है। ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा देख ले, इफ यू आर इंटरेस्टेड दैट हाउ द इनफिल्ट्रेशन एक्चुअली अकर। ठीक है ना। ओके सर। हेलो। ठीक है सर। राइट सर। अच्छा, इसके अलावा वेंटिलेशन की भी रिक्वायरमेंट्स है, उसकी स्पेसिफिकेशन आपके बुक में गिवन है। सो थोड़ा सा अगर आप इंटरेस्टेड है वो मैं आपको देख देता हूँ कि इंडिविजुअल कितनी रिक्वायरमेंट है उसकी, या आप खुद देख ले उसमें बुक में। क्या ख्याल है, देख ले उसको। सर अगर ये लोड कैलकुलेशन के ऊपर सर कोई एग्जांपल अगर दिखा दें सर। ये मैं आपको इसके रिलेवेंट एग्जांपल वगैरह आप मुझे आज बता दे, याद दिला दे। इसके रिलेवेंट एग्जांपल जिस तरह हमने टॉपिक कवर किया है ना उसी लिहाज से मैं आपके साथ कुछ शेयर कर दूंगा। ठीक है ना। ठीक है सर, बस ये क्लास के बाद फिर शेयर कर दें। हाँ, बस आप टुनाइट आप मुझे याद दिला दे, मैं आपको शेयर कर दूंगा, उस पर आप प्रैक्टिस करें। ठीक है। ठीक है सर। ओके सर। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ ले, अदरवाइज ये लेक्चर ख़त्म हुआ है। तो अगर लेक्चर से रिलेवेंट क्वेश्चन है तो आप पूछ ले ताकि मैं ये रिकॉर्डिंग पे ऑफ कर दूं। ठीक है सर। जब ये हम लोग डिजाइन करेंगे सर तो लोड कैलकुलेशंस पहले जी हम सारी कैलकुलेट कर लेंगे सर। एंड पे फिर हम इसको हाँ 3.5 किलोवाट पे वो डिवाइड करेंगे ताकि हमारे पास टनेज कैपेसिटी आ जाए। हाँ 3.5167 किलोवाट्स इज 1 टन कैपेसिटी। तो उस रिलेशन को यूज करके अगर आपके पास यूनिट्स आए हैं ना वाट्स में टोटल, तो उसको उस फैक्टर से डिवाइड करके आपके पास टोटल टनेज कैपेसिटी आ जाएगी। सर ये एट द एंड जो है जो टोटल निकालेंगे हम सर, ये सारे के सारे लोड्स को ऐड करने के बाद जो उससे डिवाइड करेंगे। हाँ, आपने अगर सेंसिबल हीट फैक्टर करना है ना तो सेंसिबल और लेटेंट सेपरेट करोगे और फिर दोनों को ऐड करोगे तो टोटल ही लोड आएगा। ठीक है। आपने जो टनेज कैपेसिटी निकालनी है वो आपके टोटल लोड से निकलेगी। ठीक है ना। ठीक है सर। जब टोटल सोर्सेज, जितने सोर्सेज आपको गिवन हो कि लाइटिंग है उसके अंदर एप्लियंस कोई गिवन है, और इसके अलावा ओपेक सरफेस से दीवार की जो मतलब वो पैरामीटर आपको गिवन हो कि एक्सटर्नल टेम्परेचर ये है, इंटरनल ये है। ठीक है। फेनेस्ट्रेशन से इतनी मिल रही है, ये सारे आप ऐड कर लोगे तो टोटल हीट जो है आप ऐड कर लोगे। ठीक है। और उसको फिर आपने 3.5167 से डिवाइड करना है, उससे उसकी टनेज जो रिक्वायर्ड लोड है वो उस टनेज फॉर्म में आ जाएगी कि इतनी टनेज कैपेसिटी इसके लिए रिक्वायर्ड है। राइट सर। ठीक है सर। सर ये मिसलेनियस लोड का सर रिपीट कर रहे हैं सर थोड़ा। मिसलिनियस लोड का ये है कि जितने सोर्सेज हमने पढ़े हैं ना, अगर इसके अलावा भी कोई चीज कंट्रीब्यूट कर रही है लोड में तो वो भी इसमें आप शामिल करोगे। ठीक है। लेकिन सर वो तो हम ऑलरेडी वो कर चुके हैं ना, मतलब कि इंटरनल एक्सटर्नली और मुख्तलिफ चीज। तो ये सर इसके एग्जांपल कोई हो सकते हैं, मतलब कि एग्जांपल दे दे के।
एग्जाम्पल इसकी क्या मतलब ये है कि लेट से कोई मतलब आपने वेंटिलेशन का थोड़ा बहुत कुछ छोड़ा है ना, इसके अलावा कोई और सोर्स जो अभी हमने डिस्कस नहीं की, आप थोड़ा सा सोच ले कि कौन सी ऐसी सोर्स है जिससे ये हीट जो है रूम के अंदर एड अप हो सकती है, तो वो आपका मिसलिनियस में आ जाएगा। ठीक है ना? ओके सर, हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल वायर्स वायरिंग लगी हुई है रूम में सर, उससे जो हीट निकली है। हाँ एग्जैक्टली, ये चीजें उसमें आ सकती है। ठीक है, लेट से कोई और मतलब ऐसी सोर्स ना कि जिसको आपने कंसीडर नहीं किया है कैलकुलेशन में, वो आपका मिसलिनियस लोड बन जाएगा। तो कुछ सेफ्टी फैक्टर आप उसमें इंटेंशनली इनकॉर्पोरेट करते हैं, क्योंकि जो आप लोड कैलकुलेट करेंगे ना वो 100% एक्यूरेट नहीं होगी। तो टू बी ऑन द सेफ साइड आप उसमें मतलब +1 या +2 इस अमाउंट से कुछ लोड आप उसमें ऐड करते हैं, ताकि मतलब अगर वो आपने कुछ पोर्शन मिस भी किया हो ना, वो उसमें कवर हो जाएगा। ओके सर, क्लियर है, थैंक यू सर। अच्छा, और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ ले। अच्छा, सो थैंक यू। ओके।